Good evening, friends. We are meeting for this autism workshop today. હું ગઈકાલે ગુજરાતીમાં નહોતો બોલ્યો. I will talk in Gujarati, Hindi and English, all the three languages, so that it becomes easy for you people to understand. And in that also, if you still have any query, you can ask at the end. I will answer all the query also. So autism એક એવી વસ્તુ છે જે ઓટો એટલે એ બાળક પોતાનામાં જ ઇન્વોલ્વ હોય છે. એ બાળક પોતાની સાથે જ રમવાનું પસંદ કરે છે કે પોતાની સાથે જ એ ઇન્વોલ્વ થવાનું ગમે છે. તો આ એક फोटो एक ऑटिस्टिक बालकનું છે. ये बच्चा देखो, आप देख सकते हो, वो अपने कान बंद कर रहा है. ये क्यों बंद करता है अपने कान? बिकॉज उसको चाहिए कि जो आवाज सुनाई दे रहा है वो उसको नहीं सुनना होता है. उसको आवाज जो सेंसेस हैं उसकी वो इतनी सारी एडवांस्ड होती है. मतलब आप समझ लो, आप वॉल्यूम 1 पे सुन रहे हो तो उन लोग वॉल्यूम 10 पे सुन सकते हैं. એટલે એ લોકોને એટલું બધું સંભળાય કે એ લોકોને એ અવાજ કે ઘોંઘાટ નથી ગમતો, અને એ અવાજ કે ઘોંઘાટ થાય છે તો એ લોકો ગભરાઈ જાય છે. એ જ રીતે એમને ભેટવું કે વળગવું પણ નથી ગમતું હોતું. શું કામ નથી ગમતું? કારણ કે એ સેન્સેશન પણ એ ઘણા જોરથી એમને ચૂભતા હોય છે, દુખતા હોય છે. એટલે અમે જોઈએ છે કે ઓટિસ્ટિક બાળકોને ભેટવાનું નથી ગમતું, વધારે લાઇટ નથી ગમતી, મારા બાળકોને જોરથી અવાજ નથી ગમતો. એટલે આ બધી વસ્તુ જે છે એ આપણે એમના અંદર શું થઈ રહ્યું છે એનો આપણને ખ્યાલ હોય તો આપણને ખબર પડે. હવે ગઈકાલે I was talking about this only, my journey. તો મારી જર્ની કેવી રીતે શરૂ થઈ? So I started my practice in 1989, and during 1999 and 2000 I was the president of AOPV, જે હવે AOPV છે, ત્યારે IAP વડોદરા કહેવાતું હતું. અને ત્યારે અમને I was also involved with Rotary Club, and Prabha Mehta, she was involved. And now there are so many others. Even Alka Smart is there today. She is the director of Disha at present. So Disha School of Autism was started in 1999. Those were the days. એ દિવસો એવા હતા કે ઓટિઝમ વિશે અમને પોતે બી વધારે ખબર નહોતી. એટલે અમે પોતે બી ખૂબ રિસર્ચ કરી અને ઓટિઝમ માટે અમે કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકીએ એ રીતે વડોદરામાં we were the first to start. એટલે આજે દિશા સ્કૂલ ઓફ ઓટિઝમને 24 વર્ષ થઈ ગયા. We started it in 1999. અને ત્યારે અમે લોકો શું કર્યું? We had 3 conferences, one after the other, where Dr. Rajesh Udani, Mari Barua from Action for Autism, New Delhi, they were invited as speakers so they could help us. અને મને હજી બી યાદ છે, the pediatricians that time asked Dr. Rajesh Udani, એમને પૂછ્યું કે ડોક્ટર Rajesh Udani, જો અમારા ક્લિનિકમાં બાળક આવે એ ઓટિસ્ટિક છે કે નહીં, એ કેવી રીતે ખબર પડે? એટલે એ કે હું તમને 3-4 સિમ્પલ વસ્તુ હું તમને કહું છું જેનાથી आप पहचान सकते हो कि वो बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं है. तो सबसे पहला ये है कि जब बच्चा आपके क्लिनिक में है और वो खेल रहा है तो आप उनके माँ बाप को बोलो कि बाहर चले जाए और देखो. सी ऑर्डिनरी बच्चा कोई भी होगा, अगर माँ बाप बाहर चले गए तो तुरंत बच्चा रोना शुरू करेगा, अपने माँ बाप को ढूंढेगा. बट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो अपने खेलने में मग्न होते हैं, એ પોતાના રમકડાઓ સાથે કે કોઈના પેલા સાથે રમતો હોય તો he will not realize કે એના મા બાપ નથી. એટલે પહેલું ડોક્ટર Rajesh Udaniએ કહ્યું કે તમે બહાર જતા રહો અને એ બાળક તમને ના શોધે તો that is one of the red flag sign. બીજું એમણે કીધું કે બાળક કેવી રીતે તમારી પાસેથી કશું માંગે છે.
ફોર એક્ઝામ્પલ આજે બાળકને પાણી પીવું હોય કે ભૂખ લાગી છે તો એ માને માટલા તરફ આંગળી ચીંધશે. એ જે આંગળી ચીંધવાનું છે એને અમે પ્રોટો ડિક્લેરેટિવ પોઇન્ટિંગ કહેતા હોઈએ છીએ. તો એ તમે જ્યારે મધરને પૂછો કે એ આંગળી ચીંધીને તમારી પાસે માંગે છે અથવા તમે એને એરોપ્લેન તમારી આંગળી બતાડીને ઉપર બતાડો અને એ તરફ જુએ, એટલે હી ઇઝ ફોલોઈંગ ધી ઇન્ડેક્સ ફિંગર પોઇન્ટિંગ, દેટ ઇઝ પ્રોટો ડિક્લેરેટિવ પોઇન્ટિંગ. તો એ અનધર રેડ ફ્લેગ સાઇન છે. ત્રીજું આપણે જોઈએ છે કે હંમેશા બાળક બોલતા થવું જોઈએ. એ બાળક, મારું ઓટિસ્ટિક બાળક ઘણીવાર બોલતું નથી અથવા મિનિંગફુલ બોલતો નથી. કારણ કે ઘણીવાર આપણને લાગે દાદા મામા, પણ એ દાદા મામા દાદાને જ દાદા કહે છે કે મમ્માને જ મમ્મા કહે છે, એ નથી હોતું. અને આ બાળકોને ઘણીવાર એકોલેલિયા હોય છે, એટલે ઘણીવાર આપણે ABCC 1 2 3 એવું શીખવાડીએ તો એ શીખતા હોય છે વિધાઉટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ રિયલ મિનિંગ ઓફ ઇટ. એટલે ધીસ ઇઝ અનધર રેડ ફ્લેગ સાઇન કે એમની સ્પીચ ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે થઈ છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. અને એમણે બીજું એક બહુ સરસ કહ્યું કે આ લોકો રૂટીન, જે એમનું રૂટીન હોય છે એ રૂટીન ચેન્જ થવાનું એમને નથી ગમતું. કે એ જે ખુરશી ઉપર બેસતા હોય એ જ ખુરશી ઉપર બેસવાનું, જે રસ્તેથી એ લોકો સ્કૂલે જતા હોય તો એ સ્કૂલે એ જ રસ્તેથી, કોઈ નવો રસ્તો તમે એમને બતાડશો કે લઈ જશો તો દે વિલ થ્રો અ ટેન્ટ્રમ. થ્રો અ ટેન્ટ્રમ એટલે બૂમાબૂમ કરી મૂકશે. એટલે આ બધું જે છે એ તમે 3-4 રેડ ફ્લેગ સાઇન તમે મા બાપને પૂછો तो तुमने एक खबर पड़શે, आपको पता चलेगा कि वो बच्चा कुछ है जिसके लिए फिर हम एमचैट या डिफरेंट वो होता है जिससे हम चेक करते हैं कि उस बच्चे में ऑटिस्टिक साइंस कितनी है. सो ये मदर या तो केयर टेकर से पूछना बहुत जरूरी होता है. अभी एक बच्चा जो 1 सवा साल का था तो उसकी माँ ने आके बोला कि वो बच्चा मेरा सुनता नहीं है, मैं कितनी बार उसको चिल्लाऊं, उसको नाम बुलाऊं, ही डजंट लुक एट मी, वो मेरे सामने देखता ही नहीं है, મારી સામે જોતો નથી, એટલે એને સંભળાતું નહીં હોય. એટલે મેં એને પૂછ્યું કે જ્યારે ટીવીમાં એની ફેવરેટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે તો એ તારી સામે એ ત્યાંથી તો કે હા ફેવરેટ ગમે તે રૂમમાં હોય દોડીને ટીવીમાં એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોવા પહોંચી જશે. ટૂંકમાં એને જે ગમે છે એ એને સાંભળવું છે, જે એને નથી ગમતું એ એને નથી સાંભળવું. સો દેટ ઇઝ વાય when I sent this child to Dr. Rajesh Udani, so મરાઠીમાં છે જગા સે કટ્ટી, એટલે જગત સાથે કટ્ટી કરવું, એટલે કિટ્ટા કરી દેવી આખા જગત સાથે. એટલે ડોક્ટર રજેશ ઉદાની told them, હવે એ બાળક છે ને મોબાઈલ બહુ જોતું હતું, એટલે ડોક્ટર રજેશ ઉદાનીએ કીધું એની મમ્મીને કે જો તમે મોબાઈલ બંધ નહીં કરો તો આ બાળકને કંઈ સુધારો નહીં આવે. અને લિટરલી આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ ઓફ ધોઝ પેરેન્ટ્સ. બંને મા બાપે મોબાઈલ પોતાનો બદલી પેલો સાદો નોકિયાનો જે મોબાઈલ હોય 1000-1200 રૂપિયા વાળો, બંને મા બાપે એ લીધો, જેનાથી એ બાળક હવે એકદમ સારું છે. એટલે ટૂંકમાં because of this mobile there is lot of cases of autism which have gone up. એટલે મોબાઈલ, ટીવી, આઈપેડ, કમ્પ્યુટર, અનફોર્ચ્યુનેટલી કોવિડના કારણે આપણે બધા વી વેર ઓલ અટેચ ટુ ધી મોબાઈલ, ધી ઓનલાઈન ક્લાસીસ એક્સેટ્રા. એટલે એના લીધે આ બાળકો બિચારાઓ વધારે ને વધારે ઓટિસ્ટિક બાળકો આપણને જોવા મળે છે. એટલે હવે ખાલી પિક્ચરો છે, હું આપને બતાડું છું. ये देखो आप, बच्चा मोबाइल में इतना मग्न है कि वो इंटरैक्शन, देखो सोशल इंटरैक्शन जिसको बोलते हैं ना, जो बच्चा दूसरों के साथ कैसे बात करना, कैसे उठना बैठना, बड़ों के साथ कैसे तमीज आना, ये सब चीजें हैं वो बच्चा मेरा नहीं सीख पाता है. क्यों नहीं सीख पाता है? क्योंकि वो पूरा टाइम मोबाइल में इन्वॉल्व है. और माँ बाप भी खुश हैं क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम थे, तो उनको को वो था ही नहीं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल के सिवाय और कुछ दें. दूसरा, देयर इज नो आई कांटेक्ट. वो आंख से आंख मिला के देखो, हम जब बात करते हैं तो एक दूसरे को आंख से आंख मिलाते हैं.
ये मेरा बच्चा आंख से आंख नहीं मिलाता है। सो ये फिर अगर आप उसको कुछ खिलौना दोगे, अगर हम कार या मोबाइल या कुछ देंगे तो हम कैसे उसको चलाते हैं, जो क्योंकि हमने रियल लाइफ में देखा है कि वो किस तरह चलती है। बट ये मेरा बच्चा क्या करेगा, એ શું કરશે, પોતાના એક પાર્ટ સાથે, વ્હીલ સાથે કે એની સાથે એ રમ્યા કરશે. એ આખી ગાડીને એઝ સચ જે રીતે રમવું જોઈએ એ નહીં રમે. મેં તમને કહ્યું એ રીતે એ લોકોને ટચ સેન્સેશન બી બહુ અઘરું લાગતું હોય છે, એટલે એ લોકોને કડલ કરવું કે હગ કરવું નથી ગમતું. પણ આવું જરૂરી નથી કે બધાને જ હગ કરવું ના ગમે. વી સી માઇલ્ડ ઓટિસ્ટિક જેને હગ કરવાનું ગમતું હોય છે, અને જેને, એટલે આ બધી જે હું વાત કહું છું એ બધામાં બધું હોવું જોઈએ એવું જરૂરી નથી. સો ઇટ વેરીઝ ફ્રોમ માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ ટુ સિવિયર ઓટિઝમ. તો જુદા જુદા બાળકોમાં તમે જુદું જુદું જોઈ શકો છો. સો ઓટિઝમ બેઝિકલી it is about the abnormality in the social interaction. એટલે આપણે બીજા સાથે કેવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરવું એ મારા બાળકોને નથી ફાવતું. એબરન્ટ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, મેં તમને કહ્યું ને કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ ખાલી બોલવામાં ખાલી કમ્યુનિકેશન નથી હોતું, નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન બી હોય છે. જેમ તમારું 1.5 વર્ષનું બાળક ભલે બોલતું ના હોય, પણ એમને ભૂખ લાગી હોય કે પાણી જોઈતું હોય તો એ તમને એ જગ્યાએ લઈ જઈને કહે છે કે મારે આ જોઈએ છે. અને છેલ્લો ત્રીજો છે રિસ્ટ્રિક્ટિવ રિપીટેટિવ બિહેવિયર. એટલે આ બાળકોને હેન્ડ ફ્લેપિંગ કે વેનેશિયન બ્લાઇન્ડ કરવું કે રોકિંગ એ ગમતું હોય છે. એટલે આ લોકો બાળકો, અને એકોલેલિયા ઇઝ વન ઓફ ધ રેપિટેટિવ બિહેવિયર્સ વિચ વી સી. એબ્સન્સ ઓફ પ્રોટો ડિક્લેરેટિવ પોઇન્ટિંગ, જે મેં તમને ઓલરેડી કહ્યું કે એ પછી સિમ્બોલિક પ્લે આ બાળકો નથી કરતા. એ લોકોને ઘર ઘર રમતા કે ગુડિયા કે સાથ કે ઉनको ચાય પિલાના કે એમને એમના હોઠ ઉપર કપ લઈ જઈને પેલું કરવું, જે આપણે સામાન્ય બાળક કરતા હોય છે, આ ઓટિસ્ટિક બાળકો એ નથી કરતા. સો this is again hand flapping and this is also seen in so many children. So thank you very much. આ મેં ટૂંકમાં તમને ઓટિઝમના બધા સ્પેક્ટ્રમ વાળા બાળકોનું મેં તમને કહ્યું. I now hand over to Vishal. Dr. Vishal, Yes, just you can start. now my screen is visible. Yes, it is visible. Very good evening to all. Manoj sir already બધું કહી દીધું છે autism વિશે. So just I revise a few points. શું છે autism, autism ના લક્ષણો શું છે, autism ના કારણ શું છે, અને autism નું મેનેજમેન્ટ ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. Things screen is freeze. Restart ke restart. Yes. Now it is going. Yes. Autism is a neurodevelopment disorder. Means કે બાળકના brain development related problem છે. Means કે જ્યારે બાળકનું brain proper direction માં develop ના થાય, તો because of that the autism થાય છે. હવે autism ના લક્ષણો શું હોય છે? Mainly 3 લક્ષણો હોય છે.
પુઅર સોશિયલાઇઝેશન, પુઅર કોમ્યુનિકેશન અને રેસ્ટ્રિક્ટિવ એન્ડ રિપીટેટિવ બિહેવિયર. મેં ડિટેલ્સમાં બધા વિશે કહીશ. પુઅર સોશિયલાઇઝેશન એઝ વી નો ધ પુઅર સોશિયલાઇઝેશન મીન્સ કે જ્યારે આપણે બાળકને બોલાવીએ ત્યારે બાળક આપણી સામે આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ કરે, એને આપણે નોર્મલ સોશિયલાઇઝેશન કહીએ છીએ. તો આવું સોશિયલાઇઝેશન ઓટિઝમ બાળકોમાં ડિફેક્ટિવ હોય છે. મીન્સ આવા બાળકોને ઇમોશનલ એટેચમેન્ટ પણ નથી હોતું. મીન્સ કે પેરેન્ટ્સ માં મમ્મી કોણ છે, ફાધર કોણ છે એ એમને ખબર નથી પડતી. મીન્સ કે જે નોર્મલ ઇમોશનલ બોન્ડિંગ જે હોવું જોઈએ પેરેન્ટ સાથે, જે આવા કિડ્સમાં હોતું નથી. અને આવા બાળકો ઇમોશનલ રેગ્યુલેટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ હોય છે. એવી રીતે એક્ઝામ્પલ આપું કે ઘરમાં કોઈ ફંક્શન છે, બધા હસે છે, ત્યારે આ બાળક રડવા લાગે છે. એનાથી ઊંધું જ્યારે કોઈ ઘરમાં કોઈ એવી સેડ ઇવેન્ટ થાય છે, બધા ક્રાય કરે છે, ત્યારે આવા બાળકો હસે છે. તો આવા બાળકોને ખબર નથી હોતી કે ઇમોશનલ સાથે કેવી રીતે રિએક્ટ કરવું. સેકન્ડ ઇઝ ધ પુઅર કોમ્યુનિકેશન્સ. Communication, first we have to understand what is the communication, what is the speech. Communications means આપણા વિચારો બીજાને કેવી રીતે કહી શકવા, એને આપણે કહીએ કોમ્યુનિકેશન. સ્પીચ મતલબ જ્યારે આપણે બાળક કોઈ પણ સેન્ટેન્સ બોલે છે, એની જાતે બોલે છે, એને સ્પીચ કહીએ છીએ. તમે જોયું હશે ડેફ એન્ડ ડમ્બ કિડ્સ જે હોય છે બોલી નથી શકતા, બટ દે આર ઇન ધ ગુડ ઇન ધ કોમ્યુનિકેશન. મીન્સ કે ઓટિઝમ વાળા બાળકોમાં સ્પીચમાં પ્રોબ્લેમ નથી હોતો, પ્રોબ્લેમ હોય છે કોમ્યુનિકેશન્સમાં. અને આ કોમ્યુનિકેશનમાં પ્રોબ્લેમ એટલા માટે હોય છે કે સોશિયલાઇઝેશનમાં પ્રોબ્લેમ હોય છે. કોઈની સાથે પણ આપણે કોમ્યુનિકેટ કરીએ, ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ મેક ધ સોશિયલાઇઝ, આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ આપણે કરીએ અને પછી આપણે એની સાથે વાતચીત કરીએ. તો ધેટ્સ વાય ઓટિઝમ વાળા બાળકોમાં સોશિયલાઇઝેશનમાં પ્રોબ્લેમ હશે. ધેટ્સ વાય ધ પ્રોબ્લેમ ઇન ધ કોમ્युनिकेशंस. थर्ड इज द रेस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर. मीन्स के ऐसे बच्चों को जो उनका रूटीन लाइफ है, रूटीन टॉयज जो है उसके साथ ही वो फिक्स रहते हैं, उनमें कुछ नया आप चेंज करते हो, रूटीन से जरा हटके कुछ करते हो, तो ऐसे बच्चे ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं. यहाँ पे आप पिक्चर में देखो कि एक बच्चे ने पूरे टॉयज एक लाइन में रखा है. तो ऐसे ऑटिज्म वाले बच्चे को ऐसे टॉयज एक लाइन में रखना, सर्कल में रखना, वो ज्यादा पसंद रहता है. और उनका जो रूटीन शेड्यूल जो रहता है वो फिक्स रहता है. कुछ चेंज करते हो तो ज्यादा वो इरिटेट हो जाते हैं. ये तीनों सिम्टम्स के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लक्षण देखने को मिलता है ऑटिस्टिक किड्स में सेंसरी इश्यू. સેન્સરી ઇશ્યુ મીન્સ કે આપણી પાસે જે 5 સેન્સીસ છે એની સાથે વધારે પડતું રિએક્ટ કરવું, ઓછું રિએક્ટ કરવું, એને આપણે સેન્સરી ઇશ્યુ કહીએ છીએ. મીન્સ કે જે સેન્સીસ સાથે આપણે નોર્મલ બાળક જે રિએક્ટ કરવું જોઈએ એના કરતા વધારે રિએક્ટ કરે કે ઓછું રિએક્ટ કરે, એને આપણે સેન્સરી ઇશ્યુ કહીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ટચ. ટચ માટેના એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપું. આવા બાળકોને નેલ કટિંગ ને હેર કટિંગમાં પ્રોબ્લેમ વધારે આવે છે કમ્પેર ટુ નોર્મલ કિડ્સ. મીન્સ કે આવા બાળકો એડપ્ટ થતા વાર લાગે છે નેલ કટિંગ અને હેર કટિંગમાં. પ્લસ આવા બાળકો કોઈ સરફેસ એમને પસંદ નથી હોતી, યા ગરમ ઠંડી ઇરેગ્યુલર ટેક્સચર હોય છે તો ટો વોકિંગ કરે છે. તો મીન્સ કે એ લોકો વધારે પડતા સેન્સિટિવ હોય છે ટચ સાથે. ધેટ્સ વાય દે આર ધ ડુઈંગ ધ ટો વોકિંગ. પ્લસ જે સરે કીધું કે આવા બાળકોને હગ કરવું ના પસંદ હોય. મીન્સ કે એ વધારે પડતું રિએક્ટ કરે છે, એમને વધારે ઇરિટેટ લાગે છે કોઈ હગ કરે ત્યારે. સો ધેટ ઇઝ વી કોલ ધ ટચ સેન્સરી ઇશ્યુ. સેકન્ડ ઇઝ ધ સાઉન્ડ સેન્સરી ઇશ્યુ, ઓડિટરી સેન્સરી ઇશ્યુ. મીન્સ કે જે પણ સાઉન્ડ રૂટીનલી સાઉન્ડ આપણે રૂટીન લાઈફમાં જે સાંભળતા હોય છે એની સાથે વધારે પડતા રિએક્ટ કરે છે કે ઓછું રિએક્ટ કરે છે. નોર્મલી આપણા ઘરમાં જે કોમન સાઉન્ડ હોય છે પ્રેશર કુકરની સીટી એન્ડ મિક્સીનો સાઉન્ડ, એની સાથે આવા બાળકો ડરતા હોય છે, કાન બંધ કરે છે કે રડવા લાગે છે. તો મીન્સ કે એ લોકો વધારે પડતા રિએક્ટ કરે છે. પ્લસ જે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ આવા બાળકોનું કોઈ ફેવરેટ સોંગ કે રાઇમ્સ સપોઝ બીજા રૂમમાં પણ વાગતી હોય તો બાળક એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં દોડીને ત્યાં જતું રહે છે અને એક્સાઇટ થઈને જમ્પિંગ ને હેડ ક્લેપિંગ કરવા લાગે છે. મીન્સ કે તે વધારે પડતા રિએક્ટ કરે છે તે સાઉન્ડ સાથે. થર્ડ ઇઝ ધ ટેસ્ટ કે ઓરોમોટર સેન્સરી ઇશ્યુ. કે આવા બાળકોને ખાવામાં પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે. મીન્સ કે જે લોકો
બાળકોને જે ખાવામાં ફેવરિટ હોય એ જ વસ્તુ ખાય, એના કરતા તમે કોઈ ચેન્જ કરો એમાં વધારે પ્રોબ્લેમ. ખાવામાં સ્પેસિફિકલી નોટ ધ ટેસ્ટ, ટેક્સચર વાઇઝ. ટેક્સચર એક્ઝામ્પલ આપો, ખીચડીની એક સીટી વધારે વાગી ગઈ કે ઓછી વાગી ગઈ, આ બાળકો એ ખીચડી પસંદ નથી કરતા. મીન્સ કે જે એમને ટેક્સચર વાળું ફૂડ પસંદ છે એ જ રૂટીનલી એ લે છે. જનરલી આવા બાળકોને ક્રન્ચી ફૂડ્સ વધારે પસંદ હોય છે, જેમાં અવાજ આવે, જ્યારે આપણે ચુઈંગ કરીએ ત્યારે અવાજ આવે એવું ફૂડ્સ આવા બાળકોને જનરલી વધારે પસંદ હોય છે. ફોર્થ ઇઝ ધ વિઝન એન્ડ વેસ્ટિબ્યુલર સેન્સરી ઇશ્યુ. મીન્સ કે આવા બાળકોને રાઉન્ડ વસ્તુ જે હોય છે એ વધારે પડતું એટ્રેક્શન હોય છે. જે એમનું ફેવરેટ ટોયસ હોય છે, કાર્સ કે વ્હીલ્સ. કાર્સ ને આપણે જે નોર્મલ બાળક રમે એના કરતા ઉલટી રીતે રમે છે. બાળક કાર કે ટ્રેનને ઉલટી કરીને એ વ્હીલ્સ જે હોય છે એને વધારે પડતા સ્પિનિંગ કર્યા કરે છે અને એ વ્હીલ્સને કન્ટિન્યુઅસ જોયા કરે છે. તો ધેટ્સ મીન્સ કે વધારે પડતા સેન્સિટિવ છે ધેટ્સ રાઉન્ડ ઓબ્જેક્ટ સાથે. સો ધેટ ઇઝ વી કોલ ધ વેસ્ટિબ્યુલર સેન્સરી ઇશ્યુ. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ધ ઓલ્ફેક્ટરી સેન્સરી ઇશ્યુ, મીન્સ સ્મેલ રિલેટેડ. મતલબ આવા બાળકોને કોઈ પણ વસ્તુ ખાતા પહેલા એ વસ્તુને પહેલા સ્મેલ કરે અને એના પછી જ ખાય છે. તો ધેટ્સ વી કોલ ધ ઓલ્ફેક્ટરી સેન્સરી ઇશ્યુ. હવે જે આ બધા સેન્સરી ઇશ્યુ મેં તમને કહ્યા એ બધા કિડ્સમાં હોય જરૂરી નથી, અને આ બધા સિમ્પટમ્સ બધા કિડ્સમાં હોય એવું જરૂરી નથી. બીકોઝ નાવડેઝ ઇઝ ઓટિઝમ લેવલ નથી થતું, ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર્સ. મીન્સ કે આ સ્પેક્ટ્રમ ઓફ ધ ડિસઓર્ડર છે, ધેટ્સ વેરી ફ્રોમ વેરી માઇલ્ડ ટુ સિવિયર. અને બધા કિડ્સમાં અલગ અલગ પેચી સિમ્પટમ્સ જોવા મળે છે, એના બેઝ પર we diagnose as a autism. So that's not means કે all sensory issue બધા કિડ્સમાં જોવા મળે. એન્ડ એસોસિએટેડ સિમ્પટમ્સ આ થઈ ગયા ઓટિઝમના સિમ્પટમ્સ. પણ એની સાથે અમુક સિમ્પટમ્સ જે હોય છે જનરલી બધા બાળકોમાં જોવા મળતા હોય છે. That's we call the associated symptoms. First is the ADHD. ADHD એટલે attention deficit hyperactivity disorders. Means ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ કે ચંચલપન. ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो ज्यादा चंचल रहते हैं, वो एक जगह पर बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ चीज करेंगे, थोड़ी देर के लिए एक चीज करेंगे, उसके बाद दूसरा चीज करने जाएंगे. मीन्स के उनका जो अटेंशन स्पान रहता है बहुत कम रहता है और ज्यादा हाइपर रहता है. सेकेंड इज रिपीटेशंस और इकोलेलिया. मीन्स के सेम चीज वो बार बार रिपीट करते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, कोई बच्चा स्विच ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूअस 1-2 मिनट के लिए करता है, कोई बच्चा कपबोर्ड का डोर ओपन क्लोज बार बार करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशंस. और जो इकोलेलिया मीन्स के जो हम बोलते हैं वो ही रिपीट करते हैं. एग्जाम्पल, कोई बच्चे को अपन पूछे कि उसका नाम क्या है, तो व्हाट्स योर नेम, वो सेम क्वेश्चन को रिपीट करेगा आंसर देने की बजाय. तो इसको जो बोलते हैं हम रिपीटेशंस. थर्ड जो रहता है इरिटेबिलिटी. ऐसे बच्चों में कुछ बच्चों में इरिटेबिलिटी ज्यादा रहता है, स्पेसिफिकली जब वो क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो वो ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं. मीन्स के वो ज्यादा सेंसिटिव हो रहे, वो ज्यादा ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन के साथ. फोर्थ इज द स्लीप प्रॉब्लम्स. मीन्स ऐसे बच्चों का जो स्लीप पैटर्न रहता है वो वेरी डिस्टर्ब रहता है. मीन्स के वो रात में सो जाते हैं, तो उसके बाद उठते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट्स के लिए रोते हैं, उसके बाद वापस सो जाता है. मीन्स उनका जो स्लीप पैटर्न जो रहता है प्रॉपर नहीं रहता है. तो ऐसे बच्चों के मैनेजमेंट में फर्स्ट हम स्लीप उसका नॉर्मलाइज करते हैं, उसके बाद जो भी ऑटिस्टिक लक्षण है उसमें कमी आती है. तो ये हो गए उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स. अभी उसका इंसिडेंस कितना है, मीन्स कितने % नॉर्मल बच्चों में ऑटिस्टिक लक्षण दिखने को मिलता है. जो लास्ट स्टडी है उसके हिसाब से 68 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता है, जो रिसेंट डेटा है, और उसमें बॉयज में ज्यादा रहता है कंपेयर टू गर्ल्स. और ये साइड में आप पिक्चर देखोगे, हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग. मीन्स के जो भी ऊपर का बर्फ है पानी के ऊपर, उतने ही बच्चे अभी तक आइडेंटिफाई हो पाए हैं. मेजोरिटी ऑफ द बच्चे आइडेंटिफाई नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द अवेयरनेस, और उनको जो फैसिलिटी रहता है वो स्पेशलिस्ट का फैसिलिटी नहीं रहता, उसकी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए. मीन्स के अपन
रियल में सभी बच्चे का असेसमेंट करें तो इसका इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ रहा है। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट यस कुछ फैक्टर है उसकी वजह से इंसिडेंस बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड। अभी उसका रीजन क्या है, जो मैंने आपको बताया 80 to 90% में उसका कोई रीजन नहीं है। पर मैं आपको बताऊंगा कुछ रिस्क फैक्टर या है जिसकी वजह से ऑटिज्म होने का चांसेस ज्यादा रहता है। जैसे मनोज सर ने बोला कि स्क्रीन टाइम ज्यादा, मोबाइल ज्यादा देखना, यस, एंड सोशलाइजेशन द लेक रहता है जो कोविड में हुआ। कोविड में सोशलाइजेशन कम हुआ, सारे पेरेंट्स ने बच्चे को मोबाइल दे दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पेसिफिकली 9 months to 2 years के बीच में उस टाइम पे जो ब्रेन का जो सर्किट होता है सबसे ज्यादा डेवलप होता है, और उस टाइम पे ज्यादा बच्चे को स्क्रीन टाइम देते हैं तो उनका जो ब्रेन का जो सर्किट है प्रॉपर वे में डेवलप नहीं होता, मीन्स कि उनका इंटरेक्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ नहीं रहता है। तो बच्चे अपने मोबाइल में स्क्रीन में बिजी रहते हैं, तो उनकी वजह से उनका सर्किट्स ऐसे डेवलप होता है जिससे वो सोशलाइज कम हो पाए। बट यस दैट इज द रिस्क फैक्टर, दैट्स नॉट द कॉज, मीन्स कि वो कारण नहीं है। जो कारण होता तो अपन जब पता चलता है ऑटिज्म है तो अपन निकाल देते मोबाइल देखना, तो बच्चे नॉर्मल नहीं होते। यस बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता है पर वो कंप्लीटली नॉर्मल नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पे सर्किट से ऐसे डायरेक्शन में डेवलप हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। जो सेकंड कॉमन कॉज है जीनेटिक, मतलब फैमिली में किसी एक बच्चे को हो तो दूसरे बच्चे में होने का चांसेस रहता है, बट दैट्स वेरी लेस देन 5%। एंड थर्ड जो रहता है हेवी मेटल्स पॉइजनिंग लाइक द लेड इनहेलेशंस। कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो रहते हैं हेवी मेटल्स वाले जो भी इंडस्ट्री है उसमें काम करते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है, बट दैट इज अ वेरी रेयर कॉज, लेस देन 1%। जो रेड लाइन में मैंने लिखा है नॉट अकर बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन, बिकॉज पहले के जमाने में माना जाता था कि वो एमएमआर वैक्सीन की वजह से होता है, पर अभी बहुत सारी स्टडी आ गई है वो कंफर्म कर रही है कि वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहा है। सो आपको वैक्सीन लेने में डरना नहीं चाहिए, दैट इज द श्योर के ऑटिज्म वैक्सीन की वजह से नहीं होता है। अभी these are the no relation with the IQ because this is most important factor, because इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स जो रहते हैं वो डॉक्टर को दिखाने में डॉक्टर को इजीली वो नहीं दिखा पाते, बिकॉज उनको लगता है कि उसके बच्चे को सब कुछ आता है, सपोज एबीसीडी है, राइम्स है, वो बोलता है, बट ये ऑटिज्म को आईक्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऑटिज्म वाले बच्चे का आईक्यू नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल से ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल से कम भी हो सकता है। आईक्यू डिफरेंट प्रॉब्लम है एंड ऑटिज्म डिफरेंट प्रॉब्लम है, मीन्स क्या ऑटिज्म को आईक्यू के साथ बिल्कुल लेना देना नहीं है। बच्चों सपोज किसी को आप अवेयर करते हो तो उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को सब कुछ आता है तो उसको ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म जो मैंने आपको बताया वो लक्षण के बेस पे हम डायग्नोस करते हैं कि इसको ऑटिज्म है कि नहीं। अभी रेड फ्लैग्स मींस के जो नॉर्मल बच्चे हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं उसमें कौन से ऐसे सिम्टम्स रहेंगे, तो उस टाइम पे आपको स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। फर्स्ट सिम्टम्स है स्पीच डिले। यस किसी बच्चे का जो स्पीच डिले रहता है, जो उम्र के हिसाब से जो बच्चा बोलना चाहिए वो बच्चा नहीं बोलता, तो उसकी वजह उसके लिए अपन को स्क्रीन करना चाहिए कि बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। स्पीच डिले मीन्स के 1 साल का बच्चा कुछ आवाज नहीं निकाल रहा है, बेबलिंग नहीं कर रहा है, 2 साल का बच्चा कुछ 2 वर्ड्स मिला के कोई सेंटेंस नहीं बोल रहा है, 3 साल का बच्चा 3 वर्ड सेंटेंस नहीं बोल रहा है, तो उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्पीच डिले है। वो वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब वो बिनाइन भी हो सकता है, और दैट्स सम रीजन बिहाइंड दैट, मींस के स्पीच डिले जो रहता है तो उसके लिए आपको आपके डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करना चाहिए, आपके बच्चे में और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड जो रहता है रिपीटेटिव मैनरिज्म, मींस के एक ना एक चीज जो रिपीट करते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी अपन को ऑटिज्म के लिए स्क्रीन करना चाहिए। थर्ड इज नॉन कंसिस्टेंसी रिस्पोंडिंग टू नेम, मींस के તમે બાળકને બોલાવો છો દર વખતે એના નામથી રિસ્પોન્સ નથી કરતો, તો એ પણ એક રેડ ફ્લેગ સાઇન છે જેના માટે આપણે ઓટિઝમ સ્ક્રીન કરવું જોઈએ। ફોર્થ ઇઝ અ સેન્સર ઇસ્યુ, જે મેં તમને કીધા કે બાળકો વધારે પડતા
સેન્સિટિવ હોય કોઈ પણ સાઉન્ડ સાથે, કોઈ પણ ટચ સાથે, એવા બાળકોમાં આપણે ઓટિઝમ માટે જોવું પડે. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ લેક ઓફ ધ પરસિસ્ટન્ટ સોશિયલ ઇન્ટરેક્શન એન્ડ ઇકોલેલિયા, મીન્સ કે એક ને એક વસ્તુ રિપીટ જે આપણે કરીએ કોઈ બાળક કરતું હોય તો એવા બાળકોમાં આપણે જોવું જોઈએ કે બાળકને ઓટિઝમ તો નથી. હવે એનું ડાયગ્નોઝ કેવી રીતે થાય છે, મીન્સ કે નિદાન એનું કેવી રીતે થાય છે. હવે ઓટિઝમ ડાયગ્નોઝ કરવા માટે કોઈ લેબોરેટરી ટેસ્ટ કે MRI, CT સ્કેન નથી હોતા કે એના બેઝ પર આપણે ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ. ઓટિઝમ ક્લિનિકલી ડાયગ્નોઝ કરે, મીન્સ કે બાળકને અમે જોઈને બાળકને ઓબ્ઝર્વ કરીએ 5-10 મિનિટ્સ માટે, એના બેઝ પર અમે ડાયગ્નોઝ કરતા હોઈએ છીએ આ બાળકને ઓટિઝમ છે કે નહીં. ઘણા ટેસ્ટ છે જેનાથી તમે જાણી શકો છો ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરતા પહેલા તમારા બાળકને કોઈ ઓટિઝમ વાળા લક્ષણો છે કે નહીં. મોસ્ટ કોમનલી યુઝિંગ સ્ક્રીન ટેસ્ટ ઇઝ ધ MCAT, મતલબ એક જાતનું સ્કોરિંગ છે. એમાં અમુક ક્વેશ્ચનનો આન્સર જે હોય છે એ તમારે આપવાનો હોય છે અને લાસ્ટમાં એક આન્સરનું ટોટલ કરવાનું હોય છે. એના બેઝ પર આપણે કહી શકીએ કે આ બાળકને ઓટિઝમ છે કે નહીં. અને ઘણા સાયકોલોજીકલ એસેસમેન્ટ જે હોય છે, કાર્સ અને આઈસા કરીને હોય છે, બટ આ બધું એસેસમેન્ટ છે એ અમે એવા બાળકોને રેકમેન્ડેડ કરીએ છીએ કે જે બાળકમાં અમને ડાઉટફુલ હોય છે કે આ બાળકને ઓટિઝમ છે કે નહીં. એન્ડ સેકન્ડ, અમને લાગે છે કે આ બાળકને ઓટિઝમ છે બટ પેરેન્ટ્સને એક્સેપ્ટન્સ નથી હોતું, ત્યારે અમે આ ટેસ્ટ રેકમેન્ડેડ કરીએ છીએ કે આ ટેસ્ટ કરાવવાથી ઓબ્જેક્ટિવ એવિડન્સ આવે છે કે બાળકને રિયલમાં ઓટિઝમ છે કે નહીં. બટ રૂટીનલી અમે બધા કિડ્સમાં એપ્લાય નથી કરતા. ઇન્વેસ્ટિગેશન અમે એટલા માટે કરીએ છીએ કે ઘણી વખતે કોઈ વિટામિન્સની ડેફિશિયન્સી હોય તો આ ઓટિઝમના જે લક્ષણો હોય એની સિવિયરિટી વધે છે. એના લીધે ડાયરેક્ટ ઓટિઝમ નથી થતું, બટ યસ વિટામિનની ડેફિશિયન્સીના લીધે આના સિમ્પટમ્સ વધે છે, સ્પેસિફિકલી વિટામિન B12 એન્ડ હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય તો ઓટિસ્ટિક બાળકોમાં ઓટિઝમના લક્ષણો વધે છે. તો એવા બાળકો અમને સપ્લિમેન્ટ્સ B12 અને આયરનનું સપ્લિમેન્ટ્સ આપતા હોઈએ છીએ. અને બેરાટીસ, મતલબ કે આવા બાળકોને સ્ક્રીનિંગ માટે અમે સાંભળવાની જે તપાસ હોય છે કરાવતા હોય છે. એમાં તો પ્રોબ્લેમ નથી, બીકોઝ એમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું મેનેજમેન્ટ અલગ હોય છે કમ્પેર ટુ ઓટિઝમ્સ. અને EEG એવા બાળકોમાં જ અમે રેકમેન્ડેડ કરીએ છીએ કે ઘણી વખતે સેકન્ડરી ઓટિઝમ, મીન્સ કે બ્રેઇનમાં પ્રોબ્લેમ હોય, મતલબ બ્રેઇનમાં કન્ટિન્યુઅસ ખેંચ આવતી હોય, એના લીધે ઓટિઝમના લક્ષણો દેખાતા, તો એને અમે કહીએ કે સેકન્ડરી ઓટિઝમ. પણ એ બધા અમે બાળકને જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ ત્યારે અમને ખબર પડી જાય હોય છે કે આવા બાળકને EEG કરવાની જરૂર છે કે નહીં, બટ બધા બાળકોને અમે રેકમેન્ડેડ નથી કરતા. હવે મેનેજમેન્ટ, એનું ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ધ અર્લી આઈડેન્ટિફિકેશન. જેટલું જલ્દી ડિટેક્ટ કરીએ એટલો વધારે ફાયદો થાય. મેં જનરલી એક્ઝામ્પલ આપતો હોઉં છું કે આ પ્રોબ્લેમ બ્રેઇનની સર્કિટ્સ પ્રોપર ના ડેવલપ થાય એના લીધે પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. હવે આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરવી છે, બ્રેઇનની સર્કિટ્સ મોડિફાઈ કરવી છે, તો જેટલું આપણે જલ્દી ડિટેક્ટ કરીએ એટલું વધારે મોડિફાઈ કરી શકીએ. એક વખત બ્રેઇનની સર્કિટ્સ ડેવલપ થઈ ગઈ પછી આપણે એટલું મોડિફાઈ નથી કરી શકતા. મીન્સ કે રસ્તો જ્યારે બનતો હોય ત્યારે આપણે રસ્તાને ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. એક વખત રસ્તો બની ગયો પછી આપણે એટલું બધું ચેન્જ નથી કરી શકતા. ધેટ્સ મીન્સ કે જેટલું જલ્દી ડિટેક્ટ કરીએ એટલો વધારે આપણને ફાયદો થાય છે. ધેટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ. આઈડિયલી મેં કહું છું લેસ ધેન 2 years પહેલા જો બાળકને આપણે ડિટેક્ટ કરીએ અને થેરાપી, સપ્લિમેન્ટ્સ ને એ બધું સ્ટાર્ટ કરીએ તો બાળકને નોર્મલ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે. સેકન્ડ, એક ડાઉટ બધાના પેરેન્ટ્સમાં હોય છે, ઓટિઝમ ક્યોરેબલ છે કે નથી. હવે મેં તમને કહીશ ઓટિઝમ ક્યોરેબલ નથી, બટ યસ ટ્રીટેબલ છે. ક્યોર નો મતલબ કે કોઈ વસ્તુનું કારણ છે એને આપણે રિમૂવ કરીએ તો એને આપણે ક્યોર કરી શકીએ. પણ જો ઓટિઝમનું કોઈ સ્પેસિફિક રીઝન નથી તો આપણે એને નોર્મલ બનાવીએ તો પણ એને આપણે ક્યોર ના બોલીએ, ટ્રીટ કરી શકીએ. એનો મતલબ કે ઓટિઝમ વાળા બાળક નોર્મલ ના થઈ શકે એવું નથી. જેટલું આપણે જલ્દી ડિટેક્ટ કરીએ એટલું નોર્મલ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય. મતલબ ઓટિઝમ વાળા બાળક નોર્મલ થઈ શકે. એવું નથી કે ઓટિઝમ ક્યોરેબલ નથી એટલે આવા બાળકો નોર્મલ નથી થઈ શકતા. બટ એ હશે આફ્ટર 5-6 years પછી આપણને ઓટિઝમના સિવિયર લક્ષણો દેખાય
આપણે કહી શકીએ કે આ બાળકમાં નોર્મલ થવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. ઓકે, તો એ મેઇન જે બધા પેરેન્ટ્સની ક્વેરી હોય છે કે ક્યોરેબલ છે કે નહીં, તો ટ્રીટ આપણે કરી શકીએ છીએ અને આવા બાળકો નોર્મલ થઈ શકે છે. તો ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ ઇઝ અર્લી આઈડેન્ટિટી. સેકન્ડ, અમે નિદાન તો આપી દઈએ છીએ કે આ બાળકને ઓટિઝમ છે. સેકન્ડ જો રહેતા હોય છે કે એક્સેપ્ટન્સ ટુ પેરેન્ટ્સ. પેરેન્ટ્સમાં એક્સેપ્ટન્સ કેટલું છે, બીકોઝ અમે જોઈએ છે ડેલી ઓપીડીમાં ઘણા બધા પેરેન્ટ્સનો એક્સેપ્ટન્સ નથી હોતું કે મારા બાળકને પ્રોબ્લેમ છે કે નથી, બીકોઝ બાળક બધું બોલે છે, બાળક એબીસીડી આવડે છે, તો આને ઓટિઝમ કેવી રીતે હોય છે. તો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર કે પેરેન્ટ્સના એક્સેપ્ટન્સ હોય તો આપણે આગળની જે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ એમાં આપણને ફાયદો મળે. બટ એક પેરેન્ટ્સ ઇઝ નોટ ધ 100% એક્સેપ્ટિંગ ધ પ્રોબ્લેમ અને પછી એ ટ્રીટમેન્ટ કરાવે તો એમાં આપણને એટલું બેનિફિટ ના મળે, બીકોઝ પેરેન્ટ્સ તરફથી જે 100% એફર્ટ જે હોવી જોઈએ ને એ નથી હોતું. તો ધીસ આર ટુ આર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર્સ. પછી જો આવે છે મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી એપ્રોચ, મીન્સ કે ઓટિઝમનું મેનેજમેન્ટ ટીમ દ્વારા થાય છે. કોઈ એક પર્સન નથી કરી શકતું, ન્યુરોલોજીસ્ટ કોઈ એનું મેનેજમેન્ટ એકલું નથી કરી શકતું, ડેવલપમેન્ટ પીડિયાટ્રિશિયન નથી કરી શકતો, થેરાપિસ્ટ નથી કરી શકતું. મીન્સ કે થેરાપિસ્ટ, ડોક્ટર્સ અને પેરેન્ટ્સ ત્રણે ભેગા થઈને બાળક પર કામ કરીશું તો બાળકમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થવાના ચાન્સીસ સૌથી વધારે. તમે જોશો કે આ ટીમ જે છે સ્ટાર્ટ વિથ ધ પીડિયાટ્રિક ન્યુરોલોજીસ્ટ ઓર ડેવલપમેન્ટલ પીડિયાટ્રિશિયન્સ, પછી ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ, સેન્સરી ઇન્ટિગ્રેશન થેરાપી, બિહેવિયર થેરાપિસ્ટ, સ્પીચ થેરાપિસ્ટ અને પેરેન્ટ્સ. તો આ બધાનો રોલ આમાં હોય છે અને બધા ટીમ એફર્ટ્સ જે કરે તો બાળકમાં નોર્મલ થવાના ચાન્સીસ સૌથી વધારે. એકલું તમે થેરાપી કરાવો, એકલી સપ્લિમેન્ટ્સ આપો તો તમને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ મળે, બટ ઇફ યુ આર ડુઈંગ ટુગેધર તો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ મળવાના ચાન્સીસ સૌથી વધારે હોય છે. હવે આ ટ્રીટમેન્ટમાં તમે જોશો એક સાઈડ છે થેરાપી અને એક બાજુ છે મેડિસિન. એટલું થેરાપીનો રોલ છે એટલું મેડિસિનનો પણ રોલ છે. સ્ટાર્ટિંગમાં અમે કોઈ પણ બાળકને અમે ડાયગ્નોઝ કરીએ છીએ ઓટિઝમ તો અમે સ્ટાર્ટિંગમાં થેરાપી એડવાઇસ કરીએ છીએ, મેઇનલી ઓક્યુપેશનલ અને સેન્સરી ઇન્ટિગ્રેશન, અને સાથે બ્રેઇન માટેના જે સપ્લિમેન્ટ્સ હોય છે એ અમે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, કાર્નોસિન, ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ અને વિટામિન B12. પછી અમે રિવ્યુ કરીએ છીએ 2-3 મંથ્સ પછી બાળકમાં કેવું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ મળ્યું. બાળકને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ મળે છે તો સેમ વેમાં આગળ મેનેજમેન્ટ કન્ટિન્યુ રાખીએ છીએ. બટ બાળકમાં હાઇપર એક્ટિવિટી વધારે છે, બાળકમાં ઇરિટેબિલિટી વધારે છે, બાળકમાં સેન્સરી ઇસ્યુ વધારે છે, રિપીટેશન્સ વધારે છે, જે થેરાપીથી પણ કંટ્રોલ નથી થઈ શકતા, તો એવા કેસમાં અમને મેડિસિન આપવાની જરૂર પડે છે, જે સ્પેસિફિક મેડિસિન જે કહીએ. હાઇપર એક્ટિવિટી માટે મેડિસિન આપે તો બાળક શાંત થાય તો જે થેરાપી કરાવે તો એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ વધારે. મીન્સ કે બાળક એક જગ્યાએ બેસે નહીં તો થેરાપિસ્ટ જે કરાવે છે તો એનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી મળતું. મીન્સ અમે મેડિસિન આપીએ તો બાળક થોડું શાંત થાય તો જે થેરાપી કરાવે જેનાથી એનું સોશિયલાઇઝેશન વધે અને પછી કોમ્યુનિકેશન્સમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય છે. બીજી થેરાપી રહે છે બિહેવિયર સ્પીચ થેરાપી. આ બધી થેરાપી કયા સ્ટેજ પર કરાવી ધેટ્સ ઓલ્સો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવું નથી કે બધી થેરાપી તમે સાથે સ્ટાર્ટ કરી દો, ખીચડી બનાવવાની નથી. ફર્સ્ટ પહેલા બાળકનું આપણું ટાર્ગેટ રહેશે કે બાળકને પહેલા શાંત કરવાનો છે, એનું સોશિયલાઇઝેશન વધારવાનું છે અને સિટિંગ ટોલરન્સ વધારવાનું છે. ફર્સ્ટ બાળક સોશિયલાઇઝ થાય છે, સિટિંગ ટોલરન્સ ઇમ્પ્રુવ થાય છે તો ઓટોમેટિકલી એનું કોમ્યુનિકેશન્સ આવે છે. તો આપણે ડાયરેક્ટ પહેલા સ્પીચ થેરાપી પર ફોકસ કરીએ, બટ બાળક આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ નથી કરતો તો સ્પીચ થેરાપી કરાવવાનો કોઈ મતલબ નથી. તો સ્પીચ થેરાપીનો રોલ પછી આવે છે. તો ફર્સ્ટ આપણે બાળકને સોશિયલાઇઝ કરવું પડે છે અને પછી પણ જો કોમ્યુનિકેશન ના આવે તો આપણે એની પર વર્ક કરવું જોઈએ છે. અને આ સ્પેસિફિક મેડિસિન અલગ અલગ સિમ્ટમ્સ, નોટ બધા કિડ્સમાં એક જ મેડિસિન કામ લાગે છે, પણ કયા સિમ્ટમ્સ પ્રીડોમિનન્ટ છે ઓટિઝમ વાળા બાળકના એના બેઝ પર અમે મેડિસિન આપીએ છીએ જેનાથી સિમ્ટમ્સ કામ ડાઉન થાય છે. સેકન્ડ ઇઝ નોટ ઓનલી થેરાપી સાથે બાળકને થેરાપી તમે 1 hour 2 hours કરાવો છો, 22 hours બાળક તમારી પાસે, તમે કેટલી એફર્ટ્સ આપો છો. એવું નથી કે તમે થેરાપી માટે લઈ જાઓ છો, જસ્ટ ટ્યુશન ક્લાસમાં લઈ જાઓ છો અને પાછા લાવો છો અને ઘરે લઈને તમે કઈ મહેનત નથી કરતા, તો બાળકના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થવાના ચાન્સીસ ઓછા હોય. એટલે તમારે પણ ઘરે જે થેરાપિસ્ટ તમને હોમ પ્રોગ્રામ આપે
એ તમારે ફોલો કરવાનો હોય છે અને એની સાથે બાળક સાથે એપ્લાય કરવાનો હોય છે. અને જેટલું થઈ શકે એટલું બાળકને વધારે સોશિયલાઇઝ બીજા નોર્મલ કિડ્સ સાથે રાખવાનું. ઘરની આજુબાજુ જે પણ કિડ્સ હોય, પ્લે ગ્રુપ કે ડે કેર તમે સ્ટાર્ટ કરો. પ્લે ગ્રુપ અને ડે કેર આપણે એકેડેમિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મોકલતા નથી, પણ બાળકને વધારે પડતું સોશિયલાઇઝ કરવા માટે. બાળક એક વખત સોશિયલાઇઝ થાય તો પછી એની સ્પીચ ઓટોમેટિકલી આવે. સ્ટાર્ટિંગમાં આવા બાળકોને જ્યારે પ્લે ગ્રુપમાં મૂકે ત્યારે બાળક વધારે પડતું રડે છે, અને વધારે પડતું રડે પછી ધીરે ધીરે સેટલ થઈને એડપ્ટ થાય છે, અને બીજા બાળકો સાથે કેવી રીતે મિક્સ થવું એ એમને નથી ખબર. મીન્સ કે ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાય છે. પહેલા બાળકની ઇરિટેબિલિટી ઓછી થાય છે, બાળક ત્યાં જાય છે, પછી સ્ટાર્ટ કરે છે મિક્સ થવાનું, અને પછી એને ખબર પડે છે શેરિંગ કન્સેપ્ટ. તો દેટ્સ ઇઝ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. એવું નથી રોકેટ સાયન્સ કે આપણે આજે કર્યું અને એક મહિનામાં આપણને રિઝલ્ટ જોવા મળે. દેટ્સ ગ્રેજ્યુઅલી અકર્સ. સેકન્ડ, નો સ્ક્રીન ટાઈમ. એક વખત ઓટિઝમ ડાયગ્નોઝ થઈ ગયા પછી તમારે સ્ક્રીન ટાઈમ ટોટલી બંધ કરી દો. સ્ક્રીન ટાઈમ આપવાથી શું થાય કે બાળક પોતાની દુનિયામાં રહે, એને એક્સટર્નલ વર્લ્ડ સાથે કેવી રીતે રિએક્ટ કરવું એ ખબર ના પડે. તો સ્ક્રીન ટાઈમ ટોટલી બંધ. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ નો હાઈ સુગર આઇટમ્સ, નો ચોકલેટ, આઈસ્ક્રીમ, જે એડિશનલ સુગર નાખેલી આઇટમ્સ એ ટોટલી બંધ કરો. એ આઇટમ્સ આપવાથી બાળક વધારે પડતું હાઇપર એક્ટિવ, વધારે પડતું ઇરિટેબલ, વધારે પડતા સેન્સર ઇસ્યુ જોવા મળે છે. તો ધેટ્સ ટુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ ટુ બી ફોલોડ બાય ધ પેરેન્ટ્સ. સ્ક્રીન ટાઈમ ટોટલી કટ ડાઉન અને સુગર વાળી આઇટમ્સ નહીં. nowadays is a GFCS ટાઈપ નો ઘણો બધો કન્સેપ્ટ છે, બધા પેરેન્ટ્સ એમની જાતે કરે છે, પણ મેં તમને ક્લેરિફાઈ કરીશ. GFC ડાયટ્સ એમાં જ હેલ્પ કરે છે જેને ગ્લુટીનની એલર્જી હોય છે. મીન્સ કે જે બાળકોને ગ્લુટીન લેવાથી એબ્ડોમિનલ સિમ્પટમ્સ થાય છે, એવા બાળકોમાં જ ગ્લુટીન ફ્રી ડાયટ હેલ્પ કરે છે. બધા કિડ્સમાં હેલ્પ નથી કરતું. તો કોઈ સ્પેસિફિક ડાયટ ફોલો કરવાની જરૂર નથી, એક્સેપ્ટ સુગર વાળી આઇટમ્સ નહીં અને સ્ક્રીન ટાઈમ ટોટલી બંધ. તો આવી રીતે અમે મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ. આપણી સપ્લિમેન્ટ્સ યા કોઈ સ્પેસિફિક મેડિસિનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, પ્લસ ઘણા સ્ટેપ જે પેરેન્ટ્સે ઘરે ફોલો કરવાના હોય છે. તો ધીસ આર ધ સ્ટેપ. આવી રીતે અમે જનરલી મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ, અને આપણે ફોકસ ઓન ધ સાયન્ટિફિક એવિડન્સ. બીકોઝ મેં જોયું છે કે ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ જો હોય છે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય છે બીકોઝ ઓફ ધીસ આર ધ ક્રોનિક કન્ડિશન. તો ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય છે, તો સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન નથી એ બધી વસ્તુઓ સ્ટાર્ટ કરે છે, અને સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન છે એ વસ્તુ પર 100% એફર્ટ્સ નથી આપતા. તો જો જે સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન છે એની પર જ આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ, અને ધેટ ઇઝ અ સ્લો એન્ડ સ્ટેડી પ્રોસિજર. ગ્રેજ્યુઅલી એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ મળશે. ઓકે, થેન્ક યુ. So now I stop the sharing screen. Thank you, Dr. Vishalbhai. Now, next topic is autistic parents' real story. So, Okay. I think Revin koi mother is there. Revin ni mother છે. Just one. And Hello. I have one question, sir. Yeah, tell me. सर रेस्पेरिडोन मेडिसिन जब दी जाती है जब Hello? हाइपर एक्टिविटी होती है. Hello. હેલો સર, Can you હું hear? રેવિનના મમ્મી. Just 1 minute. Yes, તમે પહેલા સ્ટાર્ટ કરો. ફર્સ્ટ વી સ્ટાર્ટ ધ પેરેન્ટ્સ, રિયલ પેરેન્ટ્સ ની સ્ટોરી શું છે, મતલબ જેના કિડ્સ ઓલરેડી ઓટિઝમ ડાયગ્નોઝ થઈ ગયું છે એમનો એક્સપિરિયન્સ શું છે. આપણે ફર્સ્ટ એક 1-2 પેરેન્ટ્સ નો આપણે એક્સપિરિયન્સ સાંભળીશું, અને પછી જે ઓપન ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ આપણે આન્સર કરીશું. યસ, રેવિન્સ મધર. તો સર હું ગુજરાતીમાં બોલું કે યસ હિન્દીમાં? યસ, વોટ એવર લેંગ્વેજ, નો પ્રોબ્લેમ. તો હિન્દીમાં હું બોલું છું, Yes, બીકોઝ yes. હિન્દી લોકોને બી સમજ પડે એટલે. તો પહેલા તમે તમારા બાળકનું નામ શું છે, એજ કેટલી છે, તમને તમારા બાળકની કેટલી એજ પર તમને ખબર પડી કે આને ઓટિઝમ છે, અને પછી તમારી જર્ની કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થઈ અને અત્યારે શું સ્ટેટસ છે, તો આ ફ્લોમાં તમે બધાને કહો. સારું. તો હાય એવરીવન, મારું નામ રેખા પારેખ છે
અને મને मुझे 4 ईयर का सन है, उसका नाम है रेविन। सो मैं ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली मेरे बेटे के थेरेपी के लिए इंडिया में रिलोकेट हुई हूँ। सो जब रेविन 3 साल का था, मतलब लास्ट ईयर, अभी रेविन 4 साल का है। सो मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई और मैंने वहां से मतलब मैं एक चाइल्ड केयर वर्कर हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैं जॉब करती हूँ। सो पूरा दिन मैं 4 बच्चों के साथ ही रहती थी। तो मुझे 2-3 बच्चे ऐसे होते ही थे जिनको बच्चे जो स्पेक्ट्रम में होते थे, तो उनका ही सब कुछ मेरे बेटे के साथ मिलने लगा, सिम्टम्स। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरा बेटा भी शायद वो स्पेक्ट्रम में, क्योंकि वो नेम रिस्पॉन्ड नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, बोलता नहीं था। फिर मैं इंडिया में फोन करके मेरी मम्मी से, मेरी इन लॉ से बात करती थी, तो वो लोग वो ऐसे ही बोलते थे कि बेटा है ना, वो लेट बोलेगा। और पर मैंने फिर उनको वही बताती थी कि ऐसा है नहीं, ये बोलने वाला है ही नहीं। जो बच्चा बोलता नहीं है वो पॉइंट करके भी सब कुछ बताता है। फिर काफी फोन हुआ, मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू यहाँ आ जा, तुझे सोशल सपोर्ट भी मिलेगा प्लस थेरापीज भी मिलेगी। तो जब वो 2 साल का था तभी मुझे पता चल गया था कि वो स्पेक्ट्रम में है। फिर हमने वहां पे एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि वो बहुत छोटा है, तो आप 2.5 का हो जाए तब आना। फिर हम 2.5 का हुआ, आफ्टर 6 मंथ हम वापस गए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, शायद इसके डैडी, आप बोल रहे हो कि क्वाइट है, तो माइट भी उसका पर्सनालिटी हो सकता है, उसको नहीं है। फिर मेरी 2-3 फ्रेंड्स जो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में थे, वो भी डिसेबिलिटी में काम करते थे, चाइल्ड केयर में। तो उन्होंने मुझे बोला कि रेखा, यहाँ पे बहुत स्लो जाएगा, तो बेटर तू अपने कंट्री, मतलब हमारा जो होम टाउन है इंडिया, आके तुझे सोशल सपोर्ट भी मिलेगा, थेरापीज भी अच्छे से मिलेगी। और मैं वहां पे स्पीच थेरेपी, रेविन जब 2 साल का था ना, तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं 2 घंटा ड्राइव करके जाती थी, पर मुझे इतना 45 मिनट्स में मुझे नहीं लगता था कि उसके साथ स्पीच हो रहा है, क्योंकि वहां पे फोर्स का कल्चर नहीं है। वो उसको बुलाते थे, रेविन कम हियर कम हियर, और वो सुनता ही नहीं था। तो मुझे लगा वहां पे टाइम वेस्ट है। फिर मैंने वहां पे गूगल कर लिया था कि कौन बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है। तो मुझे विशाल सर का रेटिंग अच्छा लगा था, तो फिर मैंने मन में वही रखा। जब मैं इंडिया आई, फिर इंडिया आने के बाद जैसे नेबर होते, फ्रेंड होते हैं ना, फिर उन्होंने बताया कि आप सरबानी राह को दिखाओ, डॉक्टर सरबानी राह को। तो हमने उनको भी दिखाया। उन्होंने तो रेविन को देख के ही बोल दिया कि रेविन स्पेक्ट्रम में है। पर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने बोला मैं एक बार डॉक्टर विशाल सर को तो मैं दिखाऊंगी ही। और मुझे वो डॉक्टर का अप्रोच इतना अच्छा नहीं लगा। मेरा व्यू ऐसा है, मैं सबका नहीं बता रही, मुझे इनका व्यू अप्रोच इतना नहीं ये लगा, एज अ पेरेंट, एज अ मम। फिर मैं विशाल सर के पास आई, और फिर विशाल सर के पास आने के बाद फिर मुझे उन जैसे मन में वो ही था कि मुझे उनको ही दिखाना है। तो फिर विशाल सर से बात हुई, फिर उनके पास से रेविन को, तब उन्होंने कुछ मेडिसिन नहीं बोला, उन्होंने एल कार्नोशाइन ही मुझे सजेस्ट किया। और फिर मैंने थेरापी स्टार्ट कर दी। रेविन को ABA, OT, SI, स्पीच, ये सारी थेरापी मैंने तभी स्टार्ट कर दी थी। मतलब लास्ट ईयर मैंने अप्रैल से सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। फिर और सर के साथ रेगुलर फॉलोअप में भी मैं रहती थी। फिर छोटा छोटा इंप्रूवमेंट्स मुझे दिखा। पर जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मेरा व्यू है, जो गेम चेंजर था रेविन के थ्रू आउट जर्नी में, थेरापीज तो थी, पर रेविन को बहुत स्पिनिंग था। जैसे पंखा तो कुछ स्लो घूमता होगा, रेविन इतना गोल घूमता था। जैसे वो नॉर्मल कहीं उसको खड़ा कर दो, ही स्टार्ट स्पिनिंग और जंपिंग करना, अननेसेसरली हंसना, ये सब कुछ सिम्टम्स था। फिर मैंने विशाल सर से बात किया। मैंने कहा विशाल सर, थेरापी में तो वो बैठ नहीं पा रहा है बिकॉज उसका स्पिनिंग बहुत है, बाकी होशियार बहुत है, जल्दी कैचअप कर लेता है वो। फिर विशाल सर ने मुझे एक मेडिसिन किया जो पूरा गेम चेंजर था, रेस्पिडरॉन। वो देने के बाद ही रेविन में विद इन 15 डेज में, पता नहीं वो स्पिनिंग बंद हो गया, वो सेल्फ बाइट करता था वो भी बंद हो गया। तो और मैंने ना थेरापिस्ट से मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने बताया था आप मत बताना अगर मेडिसिन दे रहे हो तो मैंने नहीं बताया। फिर वो थेरापिस्ट सब मुझसे बात करने लगे, मैडम क्या हुआ, आप कुछ दे रहे हो मेडिसिन, कुछ रेविन में सडन इतना चेंज कैसे आ गया। सो मुझे ऐसा लगता है जो गेम चेंजर था ना, वो ये मेडिसिन ही था। और मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से बात भी की कि विशाल सर आपने ये मेडिसिन दी ना, उससे ही मेरा रेविन का पूरा, और आज रेविन अभी 4 साल का है, एग्जैक्ट February 25 को उसका 4 साल कंप्लीट हुआ। रेविन का स्पिनिंग है ही नहीं, बाइटिंग तो है ही नहीं, और अभी वर्ड्स भी बोल रहा है। सेंसरीज बहुत कम हो गया वो मेडिसिन से। मैं थेरापिस्ट को तो बोली हूँ, पर मैं ज्यादा थैंक यू विशाल सर को बोलूंगी कि वो मेडिसिन से ही पूरा रेविन का गेम चेंज हो गया।
और मैंने काफी सारी मेरी फ्रेंड्स को भी मैंने बताया कि अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये सेफ है। मुझे तो बहुत, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेडिसिन देने से रेविन स्लीप में चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना एक्टिवली खेलता है, मैंने बहुत सारा ऑब्जर्व भी किया उसको, तो मुझे ऐसा लगता है गेम चेंजिंग वो रेस्पिड्रॉन से ही हुआ है। तो मैंने स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट भी ली थी सर को, और थैंक यू भी बोला था, क्योंकि उसका स्पिनिंग बहुत था, कहीं भी रख दो ना सिर्फ वो गोल ही घूमता था। तो अभी उसका सेंसरी कम है, आई कांटेक्ट इतना अच्छे से करता है, फ्यू वर्ड्स बोलना स्टार्ट किया है, दो जैसे पापा, मम्मी, डैडी, बाबा। बहुत छोटे छोटे कमांड भी उसको समझ नहीं पड़ते थे, अभी वो सब, जैसे बैग पड़ा है तो ले आओ, ये दे दो, वो दे दो, तो वो भी इतना अच्छे से वो समझता है। तो मैं थेरापी भी है, नो डाउट थेरापीज का भी रोल है, बट द गेम चेंजर इज दैट मेडिसिन, वो मैं आपको बोलना चाहूंगी। तो दैट्स Thank you, ऑल ma'am. सर। मैं यस, थैंक यू मम्मा। तो एक पेशेंट में जो उन्होंने बताया कि जो मेडिसिन दिया, तो उनका पर्सपेक्टिव है कि उनके पास बोलने लगा। पर जो मैंने आपको बताया मेरे लेक्चर में, बच्चे को सेंसरी इशू बहुत रहता है। कुछ महीनों के बाद थेरापी प्लस सप्लीमेंट्स देने के बाद भी तो अपन को मेडिसिन का हेल्प लेना चाहिए। अब बहुत सारे पेरेंट्स में ऐसा रहता है कि मेडिसिन एडिक्टिव रहता है, मेडिसिन से साइड इफेक्ट रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। वो मेडिसिन से अपने सेंसरी इशू, जो बच्चा हाइपर एक्टिविटी है उसको कम नहीं करेगी, तो वो बच्चे का कम्युनिकेशन सेकंड फेज पे है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं होगा। ठीक है। और इस मैंने जो बताया वो इंडिविजुअल पेशेंट्स पे रहता है, ऐसा नहीं कि ऐसे बच्चों में जो रिस्पिरेटरी हेल्प किया था दूसरे पेशेंट में मुझे दूसरा मेडिसिन सूट है। बट इसमें जो है मेन जो एम है कि ऐसा नहीं होता है कि मेडिसिन देने के बाद बच्चा एडिक्टिव होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स जो रहते हैं वो अवॉइड करते हैं, और वो लास्ट स्टेज में मीन्स के वो 5-6 इयर्स क्रॉस हो जाता है। उसके बाद जो अपना मैंने जो बताया ब्रेन का सर्किट्स डेवलप जो होता है जाता है, उसके बाद अपन मॉडिफाई नहीं करते। तो कौन से समय पे कौन से एज पे देना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे मेडिसिन का ऐसे थेरापी का भी है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे थेरापी सब साथ में होता है। ऐसा नहीं बोला, थेरापी का बहुत बड़ा रोल है, पर थेरापी कौन सी थेरापी देना चाहिए, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है उसके बेस पे। बच्चे में आई टू आई कांटेक्ट नहीं है तो फर्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरापी है सेंसर इंटीग्रेशन। उसके बाद आई टू आई कांटेक्ट सेंसर इंटीग्रेशन के बाद वो शांत होता है तो बिहेवियर इशू रहता है, तब हम बिहेवियर थेरापी स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चों में कम्युनिकेशन उसके बाद नहीं आता तो स्पीच थेरापी करते हैं। तो मीन्स कौन से टाइम पे कौन सी थेरापी शुरू करना है, कौन से टाइम पे कौन सी मेडिसिन शुरू करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। okay? Other Shivan father is there? Bhavya father. Bhavya father. Mr. Kerul Mistry. Okay. Yeah, tell me. आवाज आ रही है सर? Yes, yes. ओके, एक्चुअली मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सर अदर पेरेंट्स से। Yes, yes, sure. एक्चुअली Excuse me, just switch on your video if possible. ओके श्योर मैम। हेलो, हाँ दिख रहा है मैम? हाँ, Yes, हाँ, yes. दिख रहा है, yeah, it is visible. ओके, थैंक यू सर। माई सेल्फ केरुल मिस्त्री, और मेरा 2 साल का 26 मंथ सन है, हुज नेम इज भव्य मिस्त्री। एक्चुअली सर हम लोग है तो लास्ट मार्च मंथ में ही यहाँ पे बड़ौदा शिफ्ट हुए थे। इससे पहले हम लोग सेलवासा रहते थे, और सेलवासा में मेरा सन है ऑलमोस्ट 1.5 years तक हम लोग वहाँ रहे। तो ऑलमोस्ट उस टाइम तक हमें कुछ पता ही नहीं था कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बट जब हम यहाँ पे रिलोकेट हुए तो न्यू जॉब था, न्यू सेटअप था, तो हमें ऐसा अंदर से गट्स फीलिंग हुआ कि भाई कुछ तो एबनॉर्मल है, और बच्चा है यहाँ पे स्टेडी नहीं, मतलब हम ही एक्चुअल में शुरू में सर हम लोग ही सेटअप नहीं हो पाए थे यहाँ पे बड़ौदा में। तो हमें ऐसा था कि क्या पता नया एटमोस्फियर है, इसलिए हो सकता है कि बच्चे को भी इसीलिए दिक्कत आ रही है। फिर हम लोग ने क्या स्टार्ट किया कि भाई हम उसको डिफर टॉयज ला के देते थे। फिर उसको जो पसंद था वो सब खिलौने लाते थे, ये लाते थे, वो लाते थे।
पर एग्जैक्टली सर पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर हमें ऐसा एक दिन सडनली क्या हुआ कि कुछ फीवर था इसको माइनर, और हम हमारे जस्ट थोड़ा नियरेस्ट में अक्सर क्लिनिक करके है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो भी, तो नियर टू अकोटा। तो डॉक्टर राहुल थानावाला करके डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उनके यहाँ हम इसको लेके गए। तो जस्ट उन्होंने फर्स्ट विजिट में ही मतलब ये चीज नोटिस कर लिया था, और दे गाइड टू अस दैट द प्लीज शेयर अस हिज फाइल, उसका पहले से अभी तक का कुछ रिकॉर्ड है सर आपके पास? तो मैंने बोला हाँ सर है मेरे पास। तो उन्होंने जस्ट मुझे बोला कि आप लेके आइएगा, फिर मैं वो फाइल पूरा रीड करूंगा, देन आफ्टर मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। तो उन्होंने सर अप टू एंड का फाइल देखा, देन ही नोटिस, उन्होंने 2 पॉइंट मुझे बताए कि सर आपके भव्य का बॉर्न हुआ है वो तो नॉर्मल डिलीवरी है, बट उस टाइम जो डॉक्टर ने उसे वैक्यूम से खींचा, तो मेरा ये मानना है एज ए स्पेशलिस्ट कि भाई उस टाइम आपको वो डॉक्टर को सजेशन देना चाहिए था कि उसको ऑक्सीजन में रखना चाहिए था पेटी में, बट पता नहीं कि वो डॉक्टर ने क्यों नहीं रखा। तो वो फीलिंग क्या है, आपको उस टाइम कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया और उसका आपने जो बता रहे कि 1.5 साल तक वो ऑर्डिनरी फैमिली में था इधर से उधर, तो उस टाइम उसकी एक्टिविटी बहुत मतलब ज्यादा थी, उसको खेलने मिल रहा था, सराउंडिंग एरिया में क्या है बहुत सारे पीपल्स के बीच में वो 1.5 साल उसका निकला। और जैसे ही हमने सिटी चेंज करी तो हम लोग क्या यहाँ फ्लैट में रह रहे हैं, तो यहाँ उसको नहीं खेलना मिला, नहीं कोई एटमोस्फियर चेंज मिला, और 2 ही फैमिली, मतलब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में है, तो 2 ही फैमिली मिल रहा था, तो वो चीज उसे नहीं मिला। तो वहां से हमें शुरुआत हुई। फिर हमने क्या है, मेरी वाइफ मतलब गार्डन में लेके जाती है उसको, तो वहां पे एक जन ने कंसल्ट किया कि आप डॉक्टर विशाल पटेल सर से एक बार कंसल्ट करिए। तो वहां से हमने फिर डॉक्टर विशाल पटेल से अपॉइंटमेंट लिया, और वह फर्स्ट टाइम उन्हें बताया। फिर उन्होंने देख के, उनका भी यही ओपिनियन था कि भाई ये चीज है, और एक्चुअल में मिस्टर राहुल थानावाला जैसे ये सर ने आज की उसमें बताया ना कि भाई वैक्सीन का भी रोल, मतलब पिछले कई लोग ऐसा मानते हैं कि वैक्सीन की वजह से भी ये चीज होती है। एक्चुअल में राहुल सर ने बहुत सारी चीजें बताई थी, उसमें से कुछ चीज मुझे करेक्ट लगी, कुछ चीज मुझे ऐसा लगा कि वो भी मतलब करने जैसा है और कुछ नहीं करने जैसा है, दोनों चीज थी। और मेरा भी ये एज अ पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट का एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो मैंने भी क्या है, वो डॉक्टर ने बोला, लेकिन जहाँ इसका बॉर्न हुआ था वो भी मैडम थी, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उनकी भी ये मिस्टेक करते, इतना बड़ा मतलब स्टेप तो वो भी नहीं ले सकते। तो मैं 2 बार तो सेल्वस जाके आया, वही डॉक्टर से कंसल्ट करके आया, कहीं भाई ऐसा कैसे हो गया। फाइनली फिर सबका लास्ट में ओपिनियन यही आया कि भाई है इसमें थोड़ा बहुत तो आपको ये चीज करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर मैंने विशाल सर से बात करके उन्होंने बताया, वैसे हमने ट्रीटमेंट करा। और यहाँ पे न्यूरॉन करके एक सर्जन है उनका, उन्होंने डॉक्टर निसर्ग पटेल करके है, वो सेंटर चलाते हैं, थेरापी सेंटर। वहां पे हमने हमारे बच्चे को जो मतलब थेरापी चालू करवाया, अभी फिलहाल 4 है ऑलमोस्ट, और काफी कुछ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन विशाल सर, मुझे आपसे जस्ट पूछना था, हम लास्ट वीक ही आपसे अपॉइंट करके गए थे, तो एक आपने जो टैबलेट जो मैडम को अभी मेरे से पहले जो मैडम ने बात करी, उनको उनसे बहुत बेनिफिट मिला, लेकिन जस्ट मेरी वाइफ का कंसर्न ये है कि जब से ये थेरापी हाफ टेबलेट उसने स्टार्ट किया है ना, तो वो एकदम साइलेंट हो गया। तो हमने ये चीजें ना हमारे थेरापिस्ट को भी बताई, तो उन्होंने हमें बोला कि सर मैं 1 वीक उसका बिहेवियर देखता हूँ, मेरे थेरापी में वो डेली आता है बच्चा आपका, तो मैं पर्सनली उसका ध्यान दूंगा और 1 वीक के बाद आपको सजेस्ट करूंगा, अगर टेबलेट में कुछ फाइन ट्यून करना है तो हम देखेंगे कि देना है कि नहीं देना है। इसलिए मैंने अभी एट प्रेजेंट ये सवाल आपसे किया, और दूसरा कि अभी हम लोग नहीं दे रहे ये टेबलेट उसको, तो कोई उसका वो तो नहीं है ना सर, डिसएडवांटेज या ऐसा कुछ? देखो, अभी जो मैंने आपको बताया ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मींस आप समझोगे कोई एक बच्चे को एक मेडिसिन से फायदा हुआ है तो दूसरे बच्चे को फायदा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। Yes. जो आप जो बताओ ना, जो भी स्पेसिफिक मेडिसिन है, जो हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, वो सब कम करने के लिए जो भी मेडिसिन रहता है ना, वो सभी बच्चों में फायदा नहीं रहता। जो मैं आपको सभी पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि जो आप मेडिसिन देने के बाद कुछ होता है तो मुझे कांटेक्ट करना है। कुछ हाइपर एक्टिविटी के लिए जो मेडिसिन रहता है, एक्सेप्टा रहता है, इंस्पिरा, जो हम देते हैं, जनरली 70% में बच्चा शांत होता है,
पर 30% ऐसे चांसेस जो रहते हैं जो बच्चे में रिवर्स इफेक्ट आता है। रिवर्स मतलब बच्चा ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, बट वो आप मुझे फीडबैक दोगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि ये जो मैंने मेडिसिन जो बताया ना, सभी पेशेंट में वो हेल्प नहीं करने वाला। जो आपने बताया, सपोज आपके बच्चे में सूट नहीं हुई है तो अपन को शायद कम डोज करके अपन को ट्राई करना चाहिए। कम डोज में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो अपन वो मेडिसिन को स्टॉप करेंगे, समझे। मीन्स बच्चे में इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। अपन मेडिसिन ऐसा नहीं है कि उतना उसको शांत कर दे के तो उसका जो नॉर्मल लाइफ है वो बिगड़े। अपन को बैलेंस रखना है, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन के देने के बाद उसको सुला देना है। देखो, कोई भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहता है। जैसे अपन पैरासीटामोल आपने कितनी बार दिया होगा फीवर के लिए, पैरासीटामोल का आप साइड इफेक्ट देखोगे कि लीवर फेलियर रहता है। पर किसको लीवर फेलियर होता है? सब लोग पैरासीटामोल ले रहे हैं, उसकी वजह से किसको हो रहा है? तो सभी मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहता है, और वो जैसे फीडबैक देके पेरेंट्स, उसके बेस पे हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं। आप समझे? सपोज आपके बच्चे में मैंने कम अभी डोज किया और उसके बाद भी वो शांत रहता है, तो मुझे वो स्टॉप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपकी तरफ से जो फीडबैक रहेगा दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए जो रहता है, एक मैंने जो आपको बताया टीम वर्क रहता है, सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे थेरापिस्ट रहता है, थेरापिस्ट मुझे बताते हैं सर आपने मेडिसिन शुरू किया उसके बाद में ये चेंज है, उसके बाद एक बच्चा ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो जैसे मुझे फीडबैक मिलता है, हम तीनों थेरापिस्ट, पेरेंट्स एंड डॉक्टर मिलके उसको फाइन ट्यूनिंग करेंगे, उसके बाद उसका इम्प्रूवमेंट्स मिलता है। ठीक है, तो सबको आपको समझना चाहिए कि एक मेडिसिन जो अभी रेविन की मदर ने जो बोला उनके बच्चे के लिए वो, तो शायद आपके बच्चे के लिए वो सूट ना हो। ठीक है, पर मेरा कहने का मकसद वही है कि ऐसा नहीं है मेडिसिन से साइड इफेक्ट सभी बच्चों में होता है। अभी जो आपने बताया कि शांत हो गया तो अपन ने मेडिसिन स्टॉप कर दिया तो बैक टू नॉर्मल जो उसका पहले था वही होने वाला, ऐसा नहीं कि पूरा रिग्रेस होने वाला। बराबर। ठीक है, तो वो उसमें फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेगुलर फॉलोअप एंड टीम वर्क। बहुत सारे रहते हैं अकेला थेरापी रहता है, अकेला मेडिसिन रहता है, थेरापी नहीं कराते तो उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट्स नहीं मिलता। सब मिलके काम करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। ओके सर, एक चीज और पूछे, मतलब जस्ट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था। एक चीज और कि मैं सपोज मैं इसको डेली रेगुलर गार्डन में लेके जाता हूँ, तो वहाँ एक सीनियर सिटीजन मतलब है, एक एब्रॉड रिटर्न पर्सन मिले थे मुझे। जस्ट ही वॉच माय सन एंड उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बताया कि सर एक्चुअल में मैं है ना, मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ, और मैं अभी क्या है, यहाँ पे मेरा होम टाउन है इसलिए मैं आता हूँ साल में एक आध बार। तो फॉरेन में क्या है सर, फॉरेन कल्चर क्या है कि वहाँ का एक वहाँ की मैनेजमेंट समझो, या वहाँ की गवर्नमेंट का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे अगर कोई बच्चे में अगर ऐसी डिसेबिलिटी या कुछ दिखता है ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि पर्टिकुलर वो बच्चा उनकी असेंबली को मतलब घर जाके वो लोग सामने से ये चीज ऑब्जर्व करती है। और यहाँ पे क्या है, अभी धीरे धीरे इंडिया में अभी ये लेवल पे अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो ये चीज दोनों में मेनली डिफरेंट है। और उन्होंने बोला कि जहाँ पे मैं रहता था ना, सपोज मेरे ही एक रिलेटिव को ऐसा था ना, तो उसको वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्पेशल एक पर्सन मतलब डॉक्टर उसके घर पे आता था और उसको थेरापी देता था। मतलब ये बेसिक डिफरेंट क्या है। और दूसरा कि इसका ट्रीटमेंट में एक बी फ्रैंक और एज अ पेरेंट मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में इसका आप तो खुद मतलब मैं आपसे ट्रीट कर रहा हूँ, मैं थेरापी दिलवा रहा हूँ, तो मेरा मैं एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि सर नॉर्मल इंसान के बस का सौदा नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है ना बहुत कॉस्टली है। तो कई पेरेंट्स तो क्या है, खर्चे को देख के मतलब मना कर देते हैं कि वो चाह के भी ये नहीं कर पाते हैं। देखो, आपने अच्छी बात की है, पर जो आपने जो बोला ना, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ऐसे ऑटिज्म वाले बच्चे जो रहते हैं उसके लिए लेस देन जो 5 इयर्स रहता है ना, तो उसके लिए इंडिया इज सबसे बेस्ट कंट्री है। कि यहाँ पे बहुत सारे अपने रिलेटिव्स रहते हैं, सोशलाइजेशन ज्यादा होता है, आपको थेरापी चाहिए तो आपको मिल जाएगा, जो फॉरेन कंट्री में सभी पेशेंट्स को नहीं रहता। कि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी रेविन की मदर ने जो बोला, न्यूजीलैंड से शिफ्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट हुए, यूएसए यूके से, क्योंकि वहीं पे क्या रहता है कि वो जो थेरापी जो उनका रहता है वो इंश्योरेंस बेस्ड रहता है।
और उनका Yes. जो रहता है वो 6 मंथ्स में उनका वेटिंग पीरियड्स रहता है। एक बार एसेस किया जो आपने बताया, उसके बाद फिर से एसेस करेंगे, बट उस टाइम पे जो क्रिटिकल फेज जो रहता है फर्स्ट 3 to 4 years वो मिस आउट हो जाता है। उसके बाद जो पता चलता है उसके बाद अपन बहुत लेट हो जाता है। बट यस, ऐसी कंडीशन के लिए जो फैसिलिटी है, सभी सपोज आपका किसी का भी बच्चा मतलब सपोज ऑटिज्म परमानेंट रहने वाला है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो एक्सेप्टेंस जो रहता है, उनके लिए जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से जो होना चाहिए वो फॉरेन कंट्री में ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। पर हमारा अपना जो गोल जो फर्स्ट रहेगा बच्चे को नॉर्मल बनाना, उसके बाद अपन देखेंगे बच्चे में ऑटिस्टिक सिम्टम्स रह जाएंगे आगे क्या करें। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। पर मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो फॉरेन से इवन सबका पीआर का फाइल रखा है वो छोड़ के इधर आए। यस, अब दूसरा जो आपने पॉइंट बोला कि थेरेपी यस बहुत कॉस्टली रहता है, ये सब है। बट अभी गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाला है नीना माया करके, आपको पता होगा, ये तो मेरे नोटिस बोर्ड पे लिखा है, जिसमें गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को जो भी स्पेशली बच्चे जो रहते हैं उनके लिए कुछ 1 लाख 1.5 लाख पर ईयर्स जो रहता है उनका इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आपको थेरेपी के लिए 30 to 40,000 पर ईयर्स आपको देते हैं, मेडिसिन का खर्चा देते हैं, आप डॉक्टर्स को जो दिखाते हो उसका कंसल्टिंग भी आपको रिफंड होता है। वो सब फैसिलिटी अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। बट बिकॉज ऑफ आपने जो बोला अवेयरनेस नहीं है, अभी भी सभी पेरेंट्स को पता नहीं कैसी फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल है, इसीलिए सब लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी जब आओगे तो मेरी नोटिस बोर्ड पे लिखा है मीरा माया योजना करके है, उसका कैसे प्रोसेस करना है वो सब उसमें लिखा है और वो ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, तो उससे आपको बहुत सारा एटलीस्ट 1 लाख जितना है, पर अलग अलग, ऐसा नहीं है कि 30,000 पूरा मिलने वाला है। 30,000 जो उन्होंने फिक्स किया अमाउंट वही मिलने वाला है। ओके अभी और कोई पेरेंट्स को सर, वॉलंटरली हेलो सर। एक शॉर्ट एक कंसेप्ट मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर करना था, एक छोटा सा। मैं फर्स्ट सर एक्चुअल में मैं इसको गार्डन लेके जाता हूँ, तो वहाँ मुझे एक पेरेंट है और वो भी मतलब क्या है आपके जैसे डॉक्टर ही है, लेकिन एट प्रेजेंट वो हाउस वाइफ एज ए उनके अभी ओकेजन में उन्होंने फिजियोथेरापिस्ट छोड़ दिया है, लेकिन वो मेरे चाइल्ड को हर संडे मिलते हैं। तो जस्ट 4 महीने का उनका खुद का कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन ये है कि सर जो मैंने फर्स्ट टाइम आपके बच्चे को देखा था भव्य को, और अभी मैं जो देख रही हूँ इसमें काफी कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट है। और उन्होंने जस्ट एक टिप शेयर किया था मुझे, तो मैं आपको पूछ रहा था कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या, कि ये जैसे उसका अभी क्या है स्पीच के लिए तो हमारे ये थेरापिस्ट है वो अभी वर्कआउट कर ही रहे, लेकिन वो बोल देते कि एक्चुअल में क्या है जो मोरपंख आता है ना, मोरपंख बोले, यस एग्जैक्टली, तो ऐसा कुछ होता है क्या, ये लायबल है क्या? वो बोल रहे थे कि जस्ट उसके चिप्स के गाल के दोनों तरफ बोले कि आप उसको घुमाओगे ना तो वो क्या उसको इरिटेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीच जल्दी मतलब बोलने लगेगा। ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या साइंस में? नहीं, जो आप जो बता रहे हो वो साइंस ही है। जो मोरपंच का जो दैट इज अ सेंसरी इशू जो रहता है, सेंसरी इशू मतलब सपोज उसको पसंद नहीं है, उसको मैं आपके बच्चे को पकड़ूंगा तो वो रोएगा, नॉर्मल बच्चे को पकड़ूंगा मैं 2-3 बार में वो नॉर्मल बच्चा मेरे पास आने लगेगा। आपके बच्चे को मुझे 10 टाइम्स 15 टाइम्स पकड़ना पड़ेगा तभी वो मेरे साथ एडप्ट होता है। ऐसे जो आप बता रहे हो वो जो इधर गाल पे तो उसके जो सेंसरी इशू है ना वो कम होते हैं। सो इसके पीछे भी लॉजिक है, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट्स मिलता है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया ये जो है पेरेंट्स को कितना एक्सेप्टेंस है, पेरेंट्स कितना एफर्ट्स। जो मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो मेरे एक पेशेंट सा वाया ऊना से इधर आया था। अभी उसका पेशेंट बच्चे को ऑटिज्म था, मैंने कंफर्म किया, दूसरे डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, उन्होंने भी वही बोला, सबने बोला कि थेरेपी और सप्लीमेंट्स देना पड़े। बट वहीं पे ऊना में कोई भी थेरापिस्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज अ पेरिफेरी ऑफ द गुजरात, वहीं पे कोई थेरापिस्ट नहीं है। तो मैंने उनको ऑप्शन दिया है कि आप अहमदाबाद में या बड़ौदा में कुछ महीनों तक रह के आप थेरापी कराएंगे, क्योंकि आपके बच्चे को थेरापी नहीं मिल रहा है तो आपका प्रॉब्लम है, आपको कहीं से जुगाड़ करना है। अभी उसी टाइम वो मदर प्रेग्नेंट थी, तो फादर ने मुझे बताया कि
डॉक्टर साहब मैं तो नहीं रह सकता क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने बोला है कि ठीक हम घर जाके देखेंगे और ऐसा कुछ रहेगा तो मैं खुद से करूँ। तो पेरेंट्स ने यूट्यूब पे देख के थेरापी क्या रहता है, ऑक्यूपेशनल थेरापी, सेंसरी इंटीग्रेशन क्या रहता है, खुद से सीखा और खुद से अपने बच्चे पे ट्राई किया और वहीं से वो मुझे वीडियो कंसल्टिंग जो जैसे मैं बता रहा हूँ वो कर रहे हैं, तो बच्चा वो नॉर्मल हो गया। नो थेरापी, कुछ भी थेरापी नहीं था, पर उनके फादर के और मदर के अंदर ऐसा एक जोश था कि मेरे बच्चे के पीछे मुझे कुछ करना है। वो उनकी वजह से वो नॉर्मल हुआ, उनको कोई भी थेरापी नहीं मिला, वो उन्होंने खुद से सीख लिया और बच्चा वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो मेन जो मैं बोला ना, टीम वर्क करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा थेरापी की जरूरत नहीं, आप खुद से सीख लो, ऐसा नहीं है, पर आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, मैं मेरे बच्चे के लिए क्या करूंगा। बराबर। ठीक है, और कोई पेशेंट्स को वॉलंटरीली लेना है? हेलो सर। हेलो। हेलो, यस यस, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? यस यस। मैं सबको पहले सर, रिक्वेस्ट मैं करूंगा, जस्ट 1 मिनट, रिक्वेस्ट करूंगा कोई कोई डॉक्टर का नाम ना बताए कि इन्होंने कंसल्ट किया है, ऐसा जस्ट अपना एक्सपीरियंस, एक डॉक्टर को दिखाया, ऐसा डॉक्टर को दिखाया, बस किसी का नाम मत लीजिए। हाँ सर, मैं अंकलेश्वर से हूँ। मेरा बेटा अभी 9 साल का हो गया है सर। जब 3 साल का था तब हमको पता चला कि वो बोल नहीं रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऑटिज्म बताया बड़ौदा में उसको। सर बाद में मैंने उसको थेरापी किया, लेकिन हमको पता नहीं था कि थेरापी आवश्यक है या नहीं। फिर हमने 5-6 महीने थेरापी करवाया, फिर छोड़ दिया। फिर होम्योपैथिक दवा चालू करवाया। फिर होम्योपैथिक में 1-2 साल निकल गया। फिर वापस हमको पता चला कि नहीं, होम्योपैथिक से बेटर है थेरापी करो। फिर थेरापी चालू किया। फिर बोला कि नहीं नहीं, होम्योपैथिक करो। फिर वापस होम्योपैथिक किया। फिर कोरोना आ गया। फिर सर वापस अभी थेरापी करा रहे हैं 2 साल से। तो सर अभी 9 साल का हो गया है, तो उसका इम्प्रूवमेंट है, एज के हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी कुछ वर्ड्स भी बोल रहा है, ABCD भी बोल रहा है। तो सर मैं बोल रहा था सर, उसका क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक या फिर कोई पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की दवा चालू रखना पड़ेगा थेरापी के साथ साथ? देखो, वो तो मुझे देखना पड़ेगा आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक कोई मेडिसिन की जरूरत है या जस्ट विटामिन देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो वो देख के ही मैं बता पाऊंगा कि जरूरत है कि नहीं। ठीक है, और वो जो मैंने बताया कि, सॉरी, आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा मुझे? वो आपको बाद में कांटेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब। ठीक है, ओके। और कोई पेरेंट्स है जो अपना स्टोरी बताना चाहते हैं वॉलंटरीली? किसी को कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है। हेलो हेलो, सर, मैं रेविन की मम्मी। यस यस। सर मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जैसे अभी रेविन है, अभी 4 साल का है, तो 4 महीने पहले ही उसकी स्पीच आई है। और फिर उसने सडनली, मतलब जैसे सब बोलता था मम्मी पापा क्लीन, फिर बाद में सब वो ये हो गया, बंद हो गया बोलना। तो 5-6 दिन में क्या रिग्रेस फेस आ सकता है? नहीं, रिग्रेस नहीं बोलेंगे। देखो, ऑटिज्म में जो रहता है ना, अप एंड डाउन बहुत रहता है। हाँ तो मतलब के बच्चा अच्छा होता है, उसके बाद थोड़ा रहता है, कोई भी बीमार हो जाता है, फीवर के हाँ बाद उनका थोड़ा इरिटेबिलिटी, सेंसर इशू बढ़ जाता है। वो पर वो हाँ वापस कैचअप कर लेता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि वो पहले जो सीखा था वो पूरा भूल जाएगा। मतलब एक बार उसको उसने सीख लिया उसके बाद। ठीक है, ऐसा रहता है कि 1 ईयर पे वो बोल रहा था, उसकी वजह से रिग्रेशन हुआ है। तो ऐसे बच्चों में रहता है कि वो शायद मतलब बहुत सीवियर हो, तो ऐसा हो सकता है कि रिग्रेशन हो सकता है। पर आपके बच्चे में जो आपने बताया कि पहले बोल रहा था, उसके लिए उसके बाद थोड़े दिन के लिए उसने बंद किया है, तो हाँ वो वापस आ जाएगा।
वो अप एंड डाउन रहता है सभी। नहीं, अभी तो जैसे बोलने लग गया सर, अभी तो बोलता है, वो जो भी आप बोल रहे हैं कि वो रिपीट करेगा, पर फिर बाद में कुछ जैसा भी कुछ स्टैक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, फिर वो 5-6 दिन के बाद वापस भूल जाता है। तो मैंने थेरेपी से बात किया कि मैडम ऐसे क्यों हुआ, अभी तो बोल रहा था या तो अभी ये चीज कर रहा था, तो बोलते वो रिग्रेस फेस है। तो इतना 5-6 दिन में क्या रिग्रेस आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, उसको रिग्रेस नहीं बोलेगा 5-6 डेज हाँ के लिए। नहीं, हाँ रिग्रेस नहीं होता है। एक बार हाँ ऑटिज्म वाला बच्चा सीख जाता है, बट यस, या कुछ भी इलनेस होता है उसके बाद थोड़ा सा रिग्रेस है, हाँ। वो टेम्पररी वो अच्छा रहता है, सेंसरी इशू बढ़ता है, वो सब रहता है, बट ग्रेजुअली आफ्टर 1-2 मंथ्स वो फिर से कैचअप करता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, बस इतना ही पूछना था। I think there is no question, Vishal bhai. Can we conclude or we should be continue? ये आई थिंक किसी को नहीं है, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप। किसी को पूछना है और कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हेलो, हाँ सर। બોલ્યો બોલ્યો। સર રાહુલ પટેલ વાત કરું છું નવસારીથી, જય પટેલના ડેડી. ઓકે ઓકે। સર આપણે જે તમે કહો છો થેરાપી સેશનમાં જઈએ છીએ અમે, બરાબર? તો 45 મિનિટનું સેશન હોય છે, એમાં પહેલી 5-7 મિનિટ તો એમ જ વેસ્ટ થઈ જાય છે. તો આ 45 મિનિટના સેશનમાં બાળક ત્યાં તો ફટાફટ કરીને આવતું રહે છે, પણ આ સેશન ટાઈમ વધારવાની જરૂર છે. એ લોકોને ગ્રુપમાં કરાવવાની જરૂર છે. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ થેરાપી સેશનમાં આવું નથી. ઓનલી 45 મિનિટનું સેશન હોય છે, અને એ પણ એપોઇન્ટમેન્ટથી મળે છે. એક દિવસ મળે છે, બીજા દિવસે નથી મળતું, એવી રીતે થાય છે. સુરત, નવસારી એ બાજુ, બરોડાનો મને ખ્યાલ નથી, પણ આવી રીતે થાય છે. આ લોકો ગ્રુપમાં કરાવતા હોય તો બચ્ચું 2-3 કલાક બેસીને કરશું તો કરે. એવી રીતે કોઈ સ્કૂલ ખરી, પોસિબલ ખરી કે એને આપણે 4-5 કલાક સુધી तो મૂકી क्या શકીએ? चाहिए? ये सिंटेक्स। યસ, આવી સ્કૂલો હવે સ્ટાર્ટ થઈ છે ગ્રેજ્યુઅલી, મતલબ કે જેમાં બાળકને સ્કૂલમાં એજ્યુકેશન સાથે થેરાપી પણ મળે છે, એવી સ્કૂલ સ્ટાર્ટ થઈ છે. પ્લસ જે તમે કીધું કે યસ, એનું મેઇન રીઝન છે કે અત્યારે પેશન્ટ્સ જે વધે છે દિવસે દિવસે પહેલા કરતા વધારે છે. પ્લસ જે તમે થેરાપિસ્ટ જે હોય છે ધેટ્સ ઓલ્સો ઇઝ લિમિટેડ, ઠીક છે? એટલે ઓવરબર્ડન જેવી સિચ્યુએશન જે કહીએ ને એવું છે. ધેટ્સ વાય, મતલબ કે એ લોકો એટલા તમને ટાઈમ નથી આપતા. બીજું કોઈ રીઝન નથી હોતું કે તમારા બાળક સાથે નથી કરવું એમને, ઠીક છે? પણ મેઇન એ રીઝન છે કે પેશન્ટ્સ દિવસે દિવસે વધે છે અને ફેસિલિટી બધી જગ્યાએ નથી મળતી. ને બધા જે હોય છે મેઇન સિટીમાં વધારે પડતા ફોકસ હોય છે, પેરીફેરીમાં આટલી ફેસિલિટી નથી મળતી. એટલે મેં તમને સજેસ્ટ કરું છું, આપણે થેરાપી મેડિસિન પર ડિપેન્ડન્ટ નથી રહેવાનું. મેં તમને કીધું કે ત્યાં 45 મિનિટ્સ કરાવે છે, 23 અવર્સ બાળક તમારી પાસે. હવે તમે વિચારો કે 45 મિનિટ્સમાં એ કરાવશો એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મળશે કે તમે કરાવશો એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ? એ તમને ગાઈડ કરી શકશે. દે આર ધ ક્વોલિફાઈડ પર્સન. એ તમને ગાઈડ કરી શકશે કે એમાં શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, તમારે ઘરે શું એક્ટિવિટી કરાવી, આફ્ટર 2 મંથ્સ પછી આ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મળ્યું, અત્યારે શું કન્સર્ન છે, ઠીક છે? તો એ તમને ગાઈડ કરી શકશે. તો તમે એમની પર ડિપેન્ડન્ટ ના રહો. ઇવન ન્યુરોલોજીસ્ટ પર મેં તમને એક્ઝામ્પલ જે હમણાં આપ્યું, પેશન્ટ્સ ઉના રહે છે, એમને જાતે બધું કર્યું અને બાળક નોર્મલ કર્યું છે, બરાબર. એટલે તમારે કોઈની પર ડિપેન્ડન્ટ નહીં. અને તમને આટલા વર્ષો થેરાપી કરાય છે તો તમને ખબર પડી ગઈ કે થેરાપીમાં શું કરવામાં આવે છે, અને તમે ઘરે ગૂગલ પર સર્ચ કરીને, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરીને તમે જાતે કરી શકો. ઓકે સર. હા, થેન્ક યુ સર. हेलो हेलो सर। हेलो યસ યસ। हेलो હા સર, હું ધૈના મમ્મી જ બોલું છું. હવે ધૈને તો સિવિયર ઓટિઝમ છે, બરાબર? એના ડેડીએ વાત પણ તમને કરી હતી, પણ હવે ધૈને મેઇન પ્રોબ્લેમ શું છે સર, કે એ છે ને તે હેન્ડ પ્લોમ્પિંગ એ તો કરે જ છે, તમારી પેલાથી દવાથી સારું પણ છે, બધું એમ તો ઓકે જ છે, પણ સર કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે એને અમે સ્કૂલમાં મૂકીએ છીએ, તમે કીધું હતું કે નોર્મલ બચ્ચા સાથે રાખો, સ્કૂલમાં મૂકીએ છીએ, પણ સ્કૂલમાં બાળક સાથે મેચ જ નથી થતું. રોજ સ્કૂલે તો રોજ જાય છે, એને થેરાપી પર ડેલીની છે, છતાં પણ એ મતલબ બાળક સાથે ભળતું જ નથી. ટીચરને સાથે અમે કોન્ટેક્ટમાં રહીએ છીએ પણ કે તમારું બાળક નથી ભણતું એવું કહે છે સર.
देखो એમાં છે ને ટાઈમ લાગે એક ગ્રેજ્યુઅલી પ્રોસેસ અને તમે કયા એજ પર સ્ટાર્ટ કર્યું देखो આ બધા મેં તમને કીધું કે બધાના બાળક નોર્મલ નથી થતા હા. ઠીક છે તમે કયા ટાઈમ પર કઈ વસ્તુ કરીએ તમે કેટલી એફર્ટ્સ આપે એટલા માટે હા. એટલે મેં તમને જે પહેલા એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે રસ્તો એક વખત બની ગયો હોય પછી આપણે એટલું બધું ચેન્જ ના કરી શકીએ એવું નથી કે બાળકમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ નહીં બાળકમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ મળવાનું છે હા. પણ જે એની સિવિયરિટી વાઇઝ આપણને મળવાનું છે એ એની પર ડિપેન્ડ કરે પણ તમારી તરફથી જે અત્યારે તમે કરી શકો છો આપણી પાસે જે ઓપ્શન છે એ ઓપ્શન સાથે એવું નથી તમારે કોઈ શોર્ટકટ રસ્તો જોવાનો છે કે એનાથી તમારા બાળક નોર્મલ જે સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન છે જે વસ્તુ છે એ વસ્તુ તમારે કરવાની જેટલું તમે એને નોર્મલ કિડ્સ સાથે રાખશો તો એ દિવસે દિવસે તમને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મળશે બટ સ્લો એન્ડ સ્ટેડી થેન્ક યુ સર. ઓકે હેલો હેલો યસ હેલો સર હું Yes, yes. ઇન્સિયાની મોમ બોલું છું હા બોલો સર મને એમ જાણવું હતું કે અગર બચ્ચાનું આઈ કોન્ટેક્ટ આવ્યું હોય હમણાં હવે જોઈ છે રિસ્પોન્ડ કરે છે તો ગ્રેજ્યુઅલી થોડા ટાઈમમાં ચાલુ તો ના જાય ને ના એવું ના થાય એ ટેમ્પરરી થઈ શકે જો મેં પહેલા એવું ના થાય હમ. એવું ના થાય એ રહી ને બચ્ચામાં જે મતલબ જે વસ્તુ નવું શીખી રહ્યું છે પોઇન્ટિંગ શીખેલું છે નામ રિસ્પોન્ડિંગ શીખ્યું છે પાપા થોડું થોડું રિસ્પોન્સ કરે છે તો એ ચાલુ ના જાય ને થોડા ટાઈમ પીરિયડમાં ના ના એવું ચાલુ ના જાય એક વખત જે એને કેચઅપ કર્યું છે કેચઅપ જ રહેશે ને ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ થશે પણ એ ટેમ્પરરી તમને Okay, ફ્લક્ચ્યુએટ અને- દેખાશે ઓકે એ બાઇટિંગ ને અગ્રેશન હમણાં બહુ જ આવી ગયું છે એના અંદર એટલું બી કે કોઈ જે વસ્તુ એની નહીં પસંદ કરતા તો એ સીધું બાઇટ કોઈ બી હોય પછી બાઇટ કરે છે એકદમ જ બાઇટ અને અગ્રેશન ગુસ્સો એટલો કે આમ સ્નેચિંગ પર આવી જાય છે કે બસ મને મારવું જ છે હવે તો એના લીધે હું શું કરું મેં થેરેપીની બી વાત કરી તો એ લોકોએ થેરેપિસ્ટે મને એમ કીધું કે ધીરે ધીરે હો જાયગા બટ હમણાં જે એ કરે છે એના લીધે હું શું કરું મેં એનું માઇન્ડ ડાયવર્ટ કરું છું બટ તો બી એ કરે જ છે અગ્રેશન બહુ જ બતાવવા લાગી ગઈ છે એમ બરોબર દેખો ફર્સ્ટ તો તમારે છે ને સુગર વાળી આઈટમ જે પણ આપતા હોય તો ફર્સ્ટ તમારે સ્ટોપ કમ્પ્લીટલી બંધ છે સર ઓકે પ્લસ તમારે છે ને થોડી નેચરલ એક્ટિવિટી પણ કરાવવી પડશે જે પણ એની પાસે જે આટલી એનર્જી છે એ તમારે પ્રોપર ડિરેક્શન આપવી પડશે જેનાથી જે પણ એનું એગ્રેશન જે છે મેલ્ટ આઉટ થઈ શકે મીન્સ તમે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરો જેનાથી એ થાકી જાય પછી એનું ઓટોમેટિકલી જે એગ્રેશન છે એ બધું ઓછું થઈ જાય અને પછી પણ રહેતું હોય ત્યારે આપણે મેડિસિનની હેલ્પ લેવી જોઈએ જેનાથી એ થોડું કામ ડાઉન થાય પણ આઈ ફર્સ્ટ કે કેમ કે સુગર વાળી હમણાં આઈટમ્સ અમારું નહીં અને નેચરલ એક્ટિવિટી હમણાં મેં એને થોડું ક્રાઉડેડ એરિયામાં લઈ જાઉં છું તો 1.5 hour તક એ લિમિટેડ એનું ટાઈમ પીરિયડ છે એ હમણાં ફાસ્ટિંગ અમારું ચાલે છે તો હું મસ્જિદમાં લઈ જાઉં તો એ 1.5 કલાક સુધી નોર્મલ રહી છે કે હા રમે છે ભાગે છે જોઈ છે કઈ બી 1.5 કલાક પછી એટલી બી અગ્રેસિવ થઈ જાય છે કે બસ ત્યાંથી ચલને એકલી ચાલી જાય છે જોતી બી નથી કે મમ્મા પાછળ આવે છે કે નહીં બસ એકલી એનું બહાર આખી બહાર નીકળી જાય કે બસ હવે મને અહીંયાથી ચાલ્યા જવું છે તો એ એટેન્શન સ્પાન એક ઓટિઝમ વાળા બાળકોમાં જે હોય છે નોર્મલ બાળકની જે કેપેસિટી હોય છે એના કરતા ઓછું હોય છે તો એ ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ થશે એ ટેન્શન જેવી વસ્તુ નથી 1.5 કલાક સુધી એ મેનેજ થાય છે તો ગ્રેજ્યુઅલી ધીરે ધીરે મેનેજ થશે વધારે અવર્સમાં તો એના લીધે કોઈ મેડિસિન મને સ્ટાર્ટ તમે કરી આપો કે ચાલે હમણાં જેમ ચાલે છે એમ જ રહેવા દઉં જે રીતે મેં તમને કીધું હશે એ રીતે તમે ફોલોઅપમાં મારી પાસે આવજો મેં તમને જોઈશ બાળકને શું છે એની પર ડિસાઈડ કરીશ આફ્ટર 2 months તમે મને બોલાવ્યું છે ઓકે ઓકે જે રીતે કીધું છે એ રીતે તમે ફોલોઅપમાં ઓકે સર થેન્ક યુ हेलो सर मुझे भी कुछ कहना है हाँ बोलिए यस यस हेलो हेलो हाँ बोलिए हाँ गुड इवनिंग सर विशाल सर मैं अनुपम चौधरी बोल रहा हूँ दृष्टि चौधरी का फादर ओके
और आपसे जस्ट 2-3 दिन पहले कंसल्ट करके आया था सर। ओके और तो मैं एक चीज पूछना चाहता था, जो जैसे थेरेपी में 1.5 आवर और स्कूल में 2 आवर्स ये तो हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स उसमें मान लीजिए चले जाते हैं, लेकिन बाकी के 7 to 8 आवर जो हैं, जो हमारे साथ वो रखते हैं, उसमें किस तरह का व्यवहार करें? क्या उनको क्राउडेड प्लेस में ले जाएं, नहीं ले जाएं, मार्केट में ले जाएं, नहीं ले जाएं बाहर, या केवल फिर उनको मतलब कैसे रहें उनके साथ और कैसा व्यवहार करें? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जो कि 7 to 8 आवर हम लोग उनके साथ जो रहते हैं, तो उसमें कैसा व्यवहार करें, कैसे करें? ओके देखो, अभी सभी ऑटिस्टिक जो बच्चे रहते हैं, जब आप डायग्नोज करते हैं ना, सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है कि नहीं। जो दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो किसी एक को ड्रॉप लेके उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। आप 5 इयर्स का हो जाए उसके बाद आप टाइम दोगे, तो उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट जो पहले मिलने वाला है वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो दोनों में से जो दोनों वर्किंग है, तो किसी एक को ड्रॉप लेके उसके पीछे टाइम देना। अभी जो आपने बोला 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स में आप सभी टाइप की एक्टिविटी, उसको पार्क में लेके जाइए, क्राउडेड प्लेस में लेके जाइए, अलग अलग टेक्सचर वाली सरफेस जो है रहती है पार्क पे, उस पे उसको वॉक कराइए, घर पे आप उसके साथ टॉयज के लिए कुछ भी एक्टिविटी करिए। जो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा कि बच्चे को कंटिन्यूअस इन्वॉल्व रखिए, कम्युनिकेट कंटिन्यूअस बच्चे के साथ करिए। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मम्मी किचन में कुछ कुक कर रही है, तो वो उस टाइम पे बच्चे के साथ फिजिकली नहीं रह सकते, तो उस टाइम पे कैसे उससे वर्बली उसके साथ बोलिए और वर्बली उसके साथ कम्युनिकेट करिए। कंटिन्यूअस, चलो ये लेके आए, चलो अपन ये करते, कंटिन्यूअस जो भी एक्टिविटी आपको उसको पसंद है, या अलग अलग टाइप की आप एक्टिविटी ट्राई करिए, सभी टाइप के वेरिएशन उसको उस पे अप्लाई करिए। और ऐसा नहीं कि वो रोएगा तो आपको बंद करना है, जो चीज से वो रो रहा है उसी चीज आपको बार बार वो करना है, उससे वो एडेप्ट होना है। ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो रहते हैं कि बच्चे हम लेके जाते हैं थेरापी में, बहुत रोता है तो हमने थेरापी बंद कर दिया, तो वही तो मेन प्रॉब्लम है उसका। रो रहा है तो उसको तो अपन को शांत करना है। ठीक है, तो वो चीज बार बार करिए, और घर पे आप 7 to 8 आवर्स में सभी टाइप की एक्टिविटी जो उसको पसंद है, जो फिजिबल है, आपके घर के आसपास जो भी पॉसिबल है, वो आप सब कराइए। इन शॉर्ट, आप बच्चे को इन्वॉल्व रखिए, आप बच्चे को अकेला खेलने मत दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ बोलिए। सर, मेरा नाम कार्यानंद प्रसाद है, शिवांग का फादर हूँ। सर, शिवांग एक्चुअली, अब मेरी आवाज जा रही है सर? यस यस यस, बोलिए। शिवांग एक्चुअली क्या है, 1.5 साल में सर, शिवांग का थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। 1.5 साल में उन्होंने बोलना चालू कर दिया था। 1.56 इयर्स का था तो वो बोलना चालू कर दिया था, मम्मा पापा दादा दादी, फाइन किधर है, टीवी किधर है, सब चीज बोलना चालू कर दिया। लेकिन एक्चुअली क्या है, बीच में फिर सर उसका कोरोना आ गया ना, कोरोना आ गया तो हम लोग आइसोलेट हो गए थे पूरी तरह से। ठीक है, तो आइसोलेट होने के कारण देखा कि सर 2 साल के अंदर वो क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मतलब रिस्पॉन्स क्या है, वो आई कॉन्टेक्ट तो उसका था, लेकिन मम्मा पापा दादा दादी ये सब जो बोलना था वो सब बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहा था। बुलाते थे तो जरूर आता था पास में, लेकिन उसके मन मुताबिक जब टीवी या स्क्रीन पे जब कोई चीज चलता था तो उससे देख के बहुत खुश होता था। तो हम लोग को लगता था कि चलो ठीक है, कम से कम ये सब चीज देख रहा है मान ले तो अच्छा है कि मैं खुश। लेकिन ये जब सर इसका लगभग 1.25 साल का हो गया, तो हम एक पार्टी, बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ देखा कि वो किसी के साथ मतलब न रह नहीं रहा। 1.5-2 घंटे तक कंटिन्यू पार्टी चला। तो उसमें क्या वो रोते रहा, बिल्कुल रोते रहा, और मेरे हम दोनों के पास, मेरी और मेरी मिसेज के पास से वो चिपका रहा, कहीं किसी बच्चे के साथ किसी से नहीं मतलब अटैच हो रहा था। तो फिर मुझे, हम दोनों को डाउट आया कि ऐसे क्यों कर रहा। और एक दिन वॉकिंग के लिए पार्किंग में जा रहे थे, तो क्या ट्रॉली जो होता है वॉकिंग ट्रॉली, उस पे ले जा रहे थे, तो बिल्कुल एकदम सर इस टाइप से करके सो गया कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा इसमें ये है। फिर देखा कि उसमें क्या, तो फिर डॉक्टर से फॉलोअप किया यहाँ पे, 2 हेमंत, डॉक्टर हेमंत है और एक डॉक्टर प्रशांत।
ठीक है ना, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बार आप ये न्यूरो फिजिशियन जो है ना उनसे मिलिए आप। तो कुछ तो है बंदे मतलब बच्चे में प्रॉब्लम, तो आप न्यूरो फिजिशियन से एक मिलिए। तो आपका डॉक्टर विशाल पटेल सर का नंबर दिए, तो हम दोनों डिसाइड किए कि चलिए एक बार तो मिलते हैं क्या प्रॉब्लम। और घर से रिलेटिव वगैरह से फोन आते थे, हम बताते थे कि ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो फिर वो एक्चुअली उन लोग बोलते थे कि आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि लेट से बोलना चालू करे चाहे। तो मुझे तो थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा क्यों दिक्कत क्यों आ रही है। मतलब पौने 2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर बोलना चालू किया, फिर पौने 2 साल में इसका पूरा बोलना चालना बंद हो गया, मतलब इस टाइप से। तो सर डॉक्टर विशाल पटेल सर से मिले, तो उन्होंने जो इसका चेकअप किए और कंसल्टिंग किए, तो तुरंत फाइंड आउट कर लिए इसको दिक्कत तो है, ठीक है ना। तो ऑटिज्म का डिसऑर्डर है, तो उन्होंने वो फाइंड आउट किया और उन्होंने बोला कि आप एकदम सही समय पे आए हैं, 2 साल का है और सही टाइम पे इसको इंटरवेंशन जो होता है वो आप हस्तक्षेप किए इसमें, तो आपको रिजल्ट एकदम बहुत जल्दी मिल जाएगा। ज़्यादा परेशानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तो जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। तो सर का बात मानते हुए और जब ऐसा सर ने स्टेटमेंट दिया, तो फिर हम लोगों को थोड़ा आशा जगा कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद सर बोले कि थेरेपी आप चालू कीजिए। थेरेपी मैंने कराया, करीब लगभग 1 साल थेरेपी चला, लेकिन उसका 2-3 महीने के अंदर मतलब कि काफी इम्प्रूवमेंट आ गया, सोशलाइज वगैरह होने लगा, मैं गार्डन वगैरह में जाता था लेके उसको, काफी उसके साथ रहता था। शुरू में तो कुछ भी करना नहीं आता था, बहुत दिक्कत होती थी, उसको टचिंग वगैरह से भी प्रॉब्लम था। लेकिन एक चीज सर ने बोला कि इसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, आई कांटेक्ट नहीं कुछ हुआ है, मतलब आई कांटेक्ट बढ़िया है, तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगा। और 3 महीने के बाद जब फॉलोअप के लिए गए हैं सर के पास, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव है और इतने कम समय में ऐसे बच्चे मतलब रिकवरी बहुत फास्ट हो रहा है। तो आप इसमें रुकना नहीं है, मतलब आप कंटिन्यू रखिए। जो तो फिर उसका स्पीच नहीं था, उसका हर चीज इशारे से बोलता था, इशारे से बताता था, कोई भी वर्ड नहीं बोलता था, दो लो कुछ भी नहीं। तो 3-4 महीने के बाद स्पीच थेरेपी, हालांकि थेरेपी जो सेंसरी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी चला, तो उस अभी जो है 1 साल तक लगभग चला, लास्ट नवंबर 2022 तक चला थेरेपी। स्पीच थेरेपी के लिए बोले, लेकिन स्पीच थेरेपी में एक्चुअली क्या हमको हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन स्पीच थेरेपी और सर एक चीज और बोले कि इसको स्कूलिंग चालू रखना है, प्ले ग्रुप में और बच्चों के साथ जितना इंटरेक्शन हो उतना अच्छा है। ग्रुप में बच्चे के ग्रुप में जितना रखोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप लोग भी मेहनत करो इसके साथ। तो हम दोनों काफी उस समय दिक्कत तो बहुत सारा आई। हेलो, आवाज जा रही सर? यस यस, बोलिए बोलिए। तो हमने काफी घर पे भी मेहनत किया और थेरेपी भी कंटिन्यू रखा, तो आज रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी सर बोले कि थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्पीच भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, मतलब अभी पूरा सेंटेंस के साथ बोलता है। कुछ भी, कहीं खेलने जाना है, कुछ भी खाना है, थैंक यू।
हेलो, हेलो, यस, नक्स की मम्मा बोल रही हूँ। हम बोलिए। सर मेरा नक्स है, वो हाइपर एक्टिव है। उसको देख के मेरी 2 साल की लड़की है, वो भी एक्टिव है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उसको देखकर वो भी हाइपर एक्टिव हो सकती है, कैसा कुछ? देखो, ऐसा नहीं रहता है कि एक बच्चे को देख के, बट यस कुछ लक्षण मिलता है, और जो सिबलिंग रहता है तो उसमें कुछ लक्षण सिमिलर रहता है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से वो थोड़ा सा हाइपर रहेगी, पर उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स अ फॉर द, अभी वो छोटी है इसीलिए। थैंक यू। तो सर थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। तो सर अभी विशाल सर लास्ट जब नवंबर में उसका मतलब नवंबर में जब उन्होंने बिल्कुल बोले कि थेरेपी बंद कर देना है, अभी कोई जरूरत नहीं है, खाली एक दवा चल रही है उसका, जो उसके विटामिन का है दवा। बाकी स्कूल के लिए उन्होंने काफी एक ग्रुप थेरेपी में जितना रखो उतना अच्छा, बच्चे के साथ गार्डन पार्किंग और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो काफी इम्प्रूवमेंट है। और स्पीच अभी काफी बहुत सही बोलता है, मतलब पूरे सेंटेंस के साथ बोलता है। कुछ भी हमको जाना है, मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, हमको खाना दो, हमें ये चीज खाना है। लेकिन सर कभी कभी थोड़ा सा कि उसके साथ ही अभी देख रहा हूँ कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि जिद जिद बहुत ज्यादा करता है, बहुत जिद्दी हो जाता है कि हमें चाहिए तो चाहिए ऐसा, जो चीज नहीं भी चाहिए वो चीज चाहिए उसको। जैसे कुछ चीज पसंद है, चॉकलेट वगैरह पसंद है, कोई देख लिया, उसकी सिस्टर वगैरह खाते हुए कभी देख लिए, तो वो बोलता है कि हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं तो उसके लिए सामान वामान गिराना चालू कर देता है, कुछ भी आइटम उसके सामने मिला। देखो, वो टेंट्रम्स है, जो बच्चा जो स्टबर्ननेस जो बोलते हैं वो रहता है। पर वो आप कैसे कि उसके साथ डिसिप्लिन के मतलब जो रहता है, मैंने जो आपको बोला मंथ में एक आध बार आप उसको दे सकते हो, उसको ऐसा लालच देके कि अभी तू ऐसा करेगा तो तुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे उसके साथ बिहेव करना चाहिए, और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो चला जाएगा। वो ऑटिज्म के रिलेटेड नहीं है, दैट इज अ नॉर्मल बच्चों में भी रहता है स्टबर्ननेस जो बोलते हैं, ठीक है। अब उसके साथ आपको कैसे टेकल करना है, उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख, आप उसको जो प्रॉमिस कर रहे हो वो उसको आपको फुलफिल करना है। आप ऐसे करोगे, हम बाहर जाएंगे, आपने कुछ भी शरारत नहीं किया तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो वो बिहेवियर वन टाइप उसका बिहेवियर थेरापी के द्वारा उसको अपन कम कर सकते हैं। तो आप खुद से कर सकते हो, उसके लिए कोई थेरापी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो रहता है। बाकी थेरेपी से तो काफी बहुत इम्प्रूवमेंट मिला, और सर हमेशा डायग्नोसिस करते रहे से। और ये क्या है सर, एक ही चीज बोले थे कि जो आई कांटेक्ट इसका बहुत अच्छा है, आई कांटेक्ट नहीं अभी मतलब कुछ आई कांटेक्ट बहुत सही रहा है। आई कांटेक्ट जाता है तो उसमें रिकवरी में टाइम काफी लगता है, लेकिन इसका आई कांटेक्ट आने की वजह से इसका जल्दी रिकवरी हो जाएगा। खाली थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग है उस समय नया घर परचेज किए, तो फर्नीचर वगैरह का काम चलता था, तो उसमें सारा चीज मैनेज करते हुए हम बोले कि काम रुक जाए, लेकिन इसको हमको थेरेपी वगैरह कभी मतलब एब्सेंट नहीं कराना है। तो हम कम से कम 1 ईयर तो कंटिन्यू, जब सर बोले बंद करने के लिए तभी। और ज्यादा मतलब 2 ही थेरेपी में मुझे ज्यादा CSI और OT ये 2 चला, उसी में ज्यादा फायदा। स्पीच में तो मुझे ज्यादा फायदा नहीं मिला, स्पीच का तो कोई ज्यादा बेनिफिट मुझे मिला नहीं, क्योंकि स्पीच एक सेशन मतलब 12 सेशन कराया, उसमें ज्यादा बेनिफिट मिला नहीं, क्योंकि उसमें कुछ सीखा नहीं है। सर से बात हुई तो सर बोले कि आप स्कूल भेज रहे हो, स्कूल से आ जाए, स्पीच इसका आ जाएगा, थोड़ा सा डिले है लेकिन स्पीच आ जाएगा, और स्पीच आ गया। अभी बहुत ही अच्छा बोलता है। हालांकि कोई कोई जगह मतलब उसको हेजिटेशन होता है, मतलब वो थोतर बोलते हैं ना, उसमें होता है, लेकिन वो क्लियर अभी सब चीज समझता है, हम जो बोलते हैं वो समझता है, वो खुद बात करता है। तो सब चीजें काफी इम्प्रूवमेंट मतलब बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल।
सर के देख रेख में हुआ। सर मतलब इसके लिए विशाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो थेरेपिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काफी उन लोग भी मेहनत करते हैं। 45 मिनट का सेशन रहता है, लेकिन उन लोग भी काफी मेहनत। देखो अभी इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, आपकी वजह से आपका बच्चा नॉर्मल हुआ है। जो भी हमने इंस्ट्रक्शन आपको दिया, मैंने थेरापिस्ट ने, वो जो आपने फॉलो किया, अपने डॉक्टर्स थेरापी पे बिलीव किया, उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिला है। और मैं जो बोलूंगा, जो भी बच्चा नॉर्मल जो होता है उसमें पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल रहता है। कोई न्यूरोलॉजिस्ट का नहीं रहेगा, कोई थेरापिस्ट का नहीं रहेगा। पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस कितना है, कितना बिलीव है डॉक्टर्स और थेरापी पे, और आप कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। वो एक पर्सन की वजह से बच्चा नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें आपका रोल सबसे ज्यादा है। हाँ, वो आप जो बताए ना सर कि लास्ट में सेशन में कि इसमें डॉक्टर, थेरेपिस्ट और पेरेंट्स के तीनों का इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं रहेगा, और पेरेंट एक्सेप्ट जब तक नहीं करते हैं, मतलब आप शुरू में जो लास्ट स्लाइड में बताएं कि पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस करना जरूरी है, तभी आके आपका बच्चा सही हो पाएगा। बहुत ऐसा रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिलेटिव वगैरह को बताते थे तो बोलते थे कि हो जाएगा सही, लेकिन मुझे खुद मतलब ट्रस्ट नहीं था कि बच्चा बोल के उसके बाद में बोल रहा है, फिर प्रॉब्लम तो है कुछ। फिर 2-3 डॉक्टर दिखाने के बाद फिर नहीं, उस दिन जब अगर पढ़ने में नहीं जाते तो हो सकता लंबा खिंचाता, उसके कारण से फिर उस दिन जब गया सारा प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैंने फिर आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद सर से मिले तो फिर जाके पूरा कहानी सॉल्व हो पाया। थैंक यू सो मच। अभी डॉक्टर रिंकी। Vishal, and good evening, Bhai. This is Alka Smart from Disha Autism Center. Yes, Yeah, First of all, I welcome, want to Alka, welcome to you. Thank you for doing everything. been listening to you and Vishal Bhai and all the parents, and I think this is such a wonderful initiative that you have taken, and a lot of learning is happening over here. So congratulations and thank you to both of you. I No, have we a are very proud of interesting- people like Vishal Yes. and people like you. You have been the mainstay of the therapy, and I appreciate. Vishal has been so patient, and it's almost 1 hour and 45 minutes, and he's still going strong. And Alka, thank you so much. Disha has done so much for so many children across Vadodara for last 24 years. I'm really, really thankful to you. Thank you so much. And I'm going to take some more time now because I want to share a very, strange incident. Manoj bhai, you know Siddharth, right? Our student for the last 2 decades now. He came Yes, to yes, Disha yes. as a child, and a lot of therapies, lot of training, and we prepared him to be very independent. And he was doing data entry and some other jobs on the computer. And we got him a job in a multinational company. He was working, enjoying himself, and every Saturday he was coming to Disha. And suddenly this COVID happened, and for 2 years almost he couldn't go to office because there was work from home. And when he was going to the office, he had a mentor over there who would be guiding him. Okay, now you do this, abhi ye enter karo, abhi aise karo. So he lost all that, and those 2 years at home, he has forgotten everything. Or I don't know whether he's pretending that he has forgotten, but he doesn't want to sit on the computer or do any work on computer. Now he wants to go and sit with the art therapist, do artwork, do some embroidery. And the moment you tell him, Siddharth, let's do some data entry again, he point blank refuses. And we are not very sure whether we should force him This to may be sit on the depression. computer. Alka. This may be depression. Vishal, do you think that the 2 years of COVID has? Manoj bhai, he doesn't look depressed from any angle. He's happy, he may not laughing, look. interacting. No. Sometimes they get fed up of that particular thing which they have been doing for years together, and why so many times we don't have an answer.
Vishal, you must have seen, during Yes, COVID. yes, yes. But that is usually unusual in the autistic kids because they are fixed to whatever they want to do, Right. what they like. So that is might be the very rare incidence. Because of that, he is not interested in the data work. But that is very strange. Not the usually we see in the autistic kids. But should we No, force sometimes him to certain learn incidents No, computer? but you cannot force. why we force to him to do data entry? If he's enjoy the some another work and see he is happy, so we don't want to force him. Exactly. That's what I just wanted to make sure that, because he lost a good job because of this. He could be still working otherwise. So I am sharing one my experience when I was in Mumbai. One of my mentors, the patients, is the autistics. He went to abroad, start the study in the foreign country himself alone. He went alone in the another country through flight. No one is supported. You understand? And the second patient is if you tell them your birthday and the year, so he can tell which day is there on that birthday within few seconds only. How wonderful. And one of Similar to the Ian Baroda kids also, one of the autistic kids, the rank in the Limca book, first rank with competition with the normal kids. So many of these the patient is that's not the autistic kids के पास कुछ कर नहीं सकते. Yes, they are something is different, but वो जो उनको पसंद जो रहता है वो ज्यादा अच्छी तरह कर पाते. जो ऑटिस्टिक जो मैं आपको बताया कि 6-7 years के बाद अपन को पता है दे आर नॉट बिकमिंग नॉर्मल लाइफ. तो वो जो चीज करते हैं हम पेरेंट्स पूछते हैं कि इसके फ्यूचर के लिए हम क्या सोचे, हम उनको बताते हैं उसको क्या चीज पसंद है, आप कुछ स्टार्ट करिए जो चीज उसको पसंद है. मैं सबको बोलता किसी को बेकरी का कोई आइटम्स बनाना है, जो उनका मिक्सिंग जो पैटर्न रहता है वो जो बच्चे कर पाएंगे वो नॉर्मल शायद पर्सन नहीं कर पाएंगे. जो बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे ऑटिस्टिक पेशेंट जो है वो उन्होंने बेकरी स्टार्ट किया, ब्रेड कुकिंग का, बिस्किट का, और आफ्टर दैट दे आर सेलिंग. तो उनको जो भी चीज में पसंद है वो अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनर उनके अंदर क्या इंटरेस्ट है और किस में वो आगे जा सकते हैं. वही डॉक्टर विशाल हम लोग वही करते हैं दिशा में. We identify their talent and then train them in that particular talent. Only I was There just was one who worried used about to Vishal. cook very well, Alka. We used to say, Yes. एक जमवानु बगाड़े तो आंगड़ा चाटी जाए बद्दा. हाँ. Very true. I invite you, Dr. Vishal, to please visit Disha sometime, find time and come to visit us and Yes. meet our children. मनोज भाई आप ला सकते हैं उनको तो I जरूर will लेके आइए. bring Vishal. I will 100% bring Vishal. And thank you so much for this evening's initiative. Wonderful way of celebrating Autism Month. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Thank you. Shall we conclude now? Yes, yes. Yeah, Rinki. Thank you for staying back for so long. Yes. No, sir, it was really interesting. When we hear the real stories now, Yeah. it also sensitizes us because they are facing lots of problems and True. I'm having sympathy with all the parents who are facing all these problems. On behalf of Academy of Pediatrics Vadodara, હું ડોક્ટર રિંકી શાહ, સેક્રેટરી છું પીડિયાટ્રિક એસોસિએશનમાં. ડોક્ટર મનોજ અંબાણી સર જે ઘણા વર્ષોથી આ ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર્સ માટે સરની જેવી રીતે જર્ની કરી અને તો એના માટે હું સરે આખું જે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું એમનું તો સરને હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. ડોક્ટર વિશાલ પટેલ સર જેમને ઓવરવ્યુ ઓફ ઓટિઝમ આપ્યું, ઓટિઝમના લક્ષણો અને બાળકોમાં ઓટિઝમને લગતા જે કાળજી રાખવાની હોય, ડાયગ્નોસિસ, થેરાપી ના વિશે વધુ માહિતી આપી આપણને. તો ડોક્ટર વિશાલ પટેલ સરનો પણ હું
એકેડેમી ઓફ પીડિયાટ્રિક્સ વડોદરા તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બધા પેરેન્ટ્સ જે લોકોએ પોતાના બાળકોની આપવીતી અને પોતાની આપવીતી આ સ્ટેજ ઉપર આપણને બધાની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી, તો એ બધા જ પેરેન્ટ્સને હું દિલથી સલ્યુટ કરું છું કે તમે બહુ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છો અને આ જ કામ તમે કન્ટિન્યુ રાખજો અને બાળકોનું વધુમાં વધુ ધ્યાન રાખજો. અને બધા જ પેરેન્ટ્સ જે સમયસર અહીંયા આવ્યા અને આ આપણો વાર્તાલાપ સાંભળ્યો એ બદલ હું બધા જ પેરેન્ટ્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. લાસ્ટ વાઇબ્રોનિકા કંપની જે આપણને આજે આ ઝૂમ મીટિંગ ઓર્ગેનાઇઝ કરી આપી એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. Thank you, and thank you. Thank you so much. Thank you.